क्योंकि यहाँ आने से पहले हमने बड़ी कुश्ती करी होती है, पूजा पाठ, झगड़ना, समझाना, जादू तावीज, लड़ाइयाँ, लाड प्यार, सब कुछ कर कर के इतना थके होते हैं कि बैठे जरूर होते हैं यहाँ पे, पर साथ में ये भी चल रहा होता है इसने नहीं ठीक होना, मुझे कोई उम्मीद नहीं है। तो ये प्लेटफॉर्म सिखाने के साथ साथ बीमारी के बारे में, इलाज के बारे में एक उम्मीद भी जनरेट करता है, जब हम देखते हैं कि अच्छा ये फैमिली भी ठीक हो सकती है तो हम भी ठीक हो सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इस होप के सफर को शुरू करते हैं। शरण। ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ एवरीवन, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹ ਬਾਈਪੋਲਰ ਡਿਸਆਰਡਰ ਪਲੱਸ ਐਲਕੋਹਲਿਜ਼ਮ ਦੋਨੋਂ ਸੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਬਾਈਪੋਲਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਐਲਕੋਹਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਕੋਹਲ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਪੋਲਰ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਐਲਕੋਹਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਕੋਹਲਿਜ਼ਮ ਇੰਨੀ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਬਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਜੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਫ ਅ ਹਸਬੈਂਡ ਐਂਡ ਵਾਈਫ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੇਅਰ ਆਈ ਹੈਵ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਨਥਿੰਗ। that was my condition. I have everything but I have nothing. ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਡਿਨਾਇਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਫਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਮੇ 2021 ਨੂੰ ਸੀ, ਬਾਈਪੋਲਰ ਦਾ ਹਾਈ ਐਪੀਸੋਡ ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ उनको ਕਰਦੇ। नींद की प्रॉब्लम नींद हो की गई। प्रॉब्लम सबसे पहला फर्स्ट सिम्पटम वाज कि उन्हें स्लीपिंग डिसऑर्डर सी, नींद नहीं आ रही सी, बहुत सारियां मतलब ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਆਇਟ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਤੇ ਜੋ ਪਰਸਨ 5 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ 1-1 ਘੰਟਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਜੋ ਐਲਕੋਹਲ ਦਾ ਇਨਟੇਕ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਲੱਸ ਐਗਰੈਸਿਵ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਗੁੱਸਾ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਸਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਰਸਨ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰਸਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। तो मैम आपकी जब आप ट्रीटमेंट में आए तो आपकी मैरिज को कितने साल हो चुके थे? 6 साल मैम, 6 6 साल। इयर्स। तो 6 इयर्स में मतलब जब आपकी शादी हुई ऐसा ही स्टेट था कि आपने हर चीज को, इस बीमारी को बढ़ते हुए देखा? नहीं मैम, ऐसा नहीं था। मतलब जो फर्स्ट 2-3 इयर्स थे दैट वाज अ वेरी गुड पीरियड। ही वाज वेरी केयरिंग पर्सन। मतलब फॉर मी इट वाज लाइक कि ही वाज द बेस्ट हस्बैंड, लाइक एवरीवन गर्ल ड्रीम ऑफ। आई रियली थिंक दैट ही वाज द बेस्ट पर्सन क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ, ਓਨੈਸਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਬਟ ਜਦ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ 360 ਡਿਗਰੀ सब कुछ ऑनेस्टी, एवरीथिंग वाज गोइंग स्टेप बाय स्टेप। एंड मैम आई वांट टू मेंशन वन थिंग, जो फर्स्ट एपीसोड होया सी ना तो डॉक्टर ने डायग्नोस बनाया कि बाइपोलर डिसऑर्डर, और मैं ना मैम नेट ते सर्च किया, ਉਦੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਪਟਮਸ। ਐਂਡ ਮੈਮ ਵਾਟ ਮੇਰੀ ਡਿਨਾਇਲ ਦੇਖੋ, जो सिम्टम्स नहीं सी ना, आई वाज लुकिंग फॉर दैट कि अच्छा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये होता है कि हमें हमारे पेशेंट का नशा है, नशा ये नहीं है, ये नहीं है, यू नो। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन करा फैमिली का डिनाइल कि दिखते हुए भी हमें लगता है नहीं नहीं मेरा हस्बैंड नहीं हो सकता, राइट, है ना। मतलब है ना, ये चीज थी। और मैंने देखा 2 year from 2021 to 2023 when we came here, that every symptom which I was denying, that every symptom was popping up. So that was a stage first denial, then there was depression, then there was anger, everything that which जो comes हमारा in ग्रीफ ग्राफ में होता yes है। ma'am, everything. And at the end it was like that ki life is over now, else treatment or there's nothing. And जो चीज़ें थी ना, मैं वो मीटिंग जो थी ना, मैंने सर्च करना, एक चीज़ थी मेरे अंदर कि मुझे छोड़ना नहीं है, मुझे ठीक करना है।
So I was searching on internet, then I came across this hospital, and before coming here I was listening meeting for 1 year. For 1 years when I came here I आप was in पूछ रहे थे ना acceptance. मीटिंग का असर, आप ये खुद सुन रहे हो। यहाँ आने से पहले 1 साल से ये मीटिंग सुन रही And थी। every meeting is till date not a single meeting, whether it Yes. is morning meeting, Saturday meeting, this meeting. Same is my with my mother-in-law, father-in-law. इस टाइम हम बैठ के सारे मीटिंग सुनते हैं आंटी सुबह आप वाले. बताएं थोड़ा हाँ जी। कि एक माँ का सफर कैसा था। मतलब छोटे होते तो बच्चे का एक डिफरेंट जर्नी आपने देखा होगा। हाँ जी, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਸੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਉਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਵਧਿਆ ਤੇ ਉਵੇਂ-ਉਵੇਂ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਉਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ। मतलब वो पहले से ही कम बोलता था, हाँ जी, पहले से शेयरिंग कम कम करता हाँ था। जी, हाँ जी। ये भी चीज हमारे पेशेंट्स में बहुत होती है। मतलब साइंस सेज दैट कि हमारे पेशेंट एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने इमोशंस को। इंट्रोवर्ट। हाँ जी। बाइपोलर में डिप्रेशन होता है। द टेक्निकली कॉमन तरीके से हम ऐसे समझते हैं, बाइपोलर मीन 2 पोल, है ना। बाइपोलर मीन्स कि हमारा जो दिमाग है ना, मान लो उसके केमिकल्स एक स्पीड में चलते हैं, जैसे हमारी हार्ट रेट होती है, पल्स होती है, इसी तरह एक नॉर्मल बहाव होता है केमिकल्स का। ठीक है, थोड़ा बहुत सबका ऊपर नीचे होता है। मान लीजिए घर में कुछ अनहोनी हुई तो सब थोड़ा लो हो जाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद वापस आ जाएंगे। घर में कोई खुशी का माहौल है, कोई शादी है, तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं, ये कर लो वो कर लो, थॉट्स बढ़ जाते हैं। जैसे नॉर्मली हमें एक दिन में कम से कम 70,000 सोचें आती है, तो स्पीड बढ़ जाएगी तो सोचें भी बढ़ जाएंगी। ठीक है, बाइपोलर डिसऑर्डर मीन्स या तो हमारा पेशेंट का डोपामिन लेवल, खुशी का जो केमिकल है, वो इतना ज्यादा हो जाता है कि वो इलेटेड होता है, एक्साइटेड होता मेनिया में चला जाता है। मतलब दिमाग की मशीन बनी थी 70,000 सोचों के लिए, उसको अब 1 लाख से ऊपर सोचें आ रही है, तो तेजी आ जाना। मेनिया इज हाई फेज। हाई फेज मीन्स केमिकल आपका इतना बढ़ गया है कि आपका मूड, चिड़चिड़ापन, एनर्जी इतनी आ गई है, आप सोना नहीं चाहते, आप बड़े बड़े ग्रैंडियोसिटी हो जाती है, मैं ये कर सकता हूँ। माय हस्बैंड इज अ बाइपोलर, ही कैन एक्सप्लेन। नितिन आप करो। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਪੋਲਰ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਸਲੋਲੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਲੋਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਬਾਈਪੋਲਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਨਾ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਸਕਦਾ, ना ਨਾ नीचे से, ਥੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਉੱਤੇ जा सकता। और वो दोनों, उसमें दोनों फेजेस आती हैं। डिप्रेशन वाले में खाली नीचे आएगा, उसको यूनिपोलर डिप्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, जैसे दीपिका पादुकोण ने शेयर करा अपनी मीटिंग्स में, उसको यूनिपोलर है। तो और- बाइपोलर मीन्स ऊपर नीचे आप दोनों फेजेस में जा सकते हैं, बिल्कुल लो और- भी जा सकते हैं जब सुसाइड की फीलिंग या। हाँ जी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जब फेज में बंदा चले जाता है, चाहे वो नीचे वाला फेज हो, डिप्रेशन वाला, या ऊपर वाला, मेडिसिन के बिना वो वापस नहीं आ सकता अपना इनटू द नॉर्मल फेज। जैसे हमारी शुगर बढ़ जाती है तो फिर मेडिसिन से शुगर लेवल नीचे आते हैं, ब्लड प्रेशर नीचे आता है। इसी तरह केमिकल्स इतने ज्यादा हो जाते हैं, मतलब एक स्टेज के बाद अगर और बढ़ जाए तो साइकोसिस हो जाता है, मतलब नियर टू मैडनेस, जहाँ पे ये कहना कि आवाजें सुनाई दे रही हैं, चीजें दिख रही हैं, कोई मेरे बारे में बात कर रहा है, शक बढ़ जाना। तो ये सारे केमिकल डिसऑर्डर है। तो इसमें एक जो बाइपोलर का डिसऑर्डर का पेशेंट है, ये कहना मुश्किल है कि पहले बाइपोलर डिसऑर्डर आया या नशा आया, बट द थिंग इज दोनों ही केमिकल डिसऑर्डर है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर वाला पेशेंट अगर अल्कोहल लेगा तो बाइपोलर का फेज आएगा, बाइपोलर का फेज आएगा तो क्रेविंग बढ़ सकती है। और इन So that is सिचुएशंस में जैसे अपना भैन जी दस रहे हैं, एक पर्सन ना बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सन बन जाता है, हाँ, बिल्कुल डिफरेंट, पर्सनैलिटी मैम Personality डिफरेंट हो बोलो। जाती है। बिल्कुल चेंज हो जाता आप बताओ क्या क्या मतलब फेज में होता फेज था। में देखो मैम ऐसे था कि जैसे मैंने सबसे पहली चीज जो उनमें नोटिस आई थी वो ये थी कि वो कम बोलते थे, ज्यादा बोलने लग गए थे।
ये सबसे मतलब ज्यादा तेजी आएगी तो चुप रहने वाला ज्यादा ज़्यादा बोलने बोलने लगेगा। लग जाता था। और मैम जैसे कि ना, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम जो मुझे ऐसे लगा कि वो जैसे अपने फ्रेंड्स को बहुत कम कॉल करते थे, कोई 1 महीने में 1 आधी बार, ज़्यादा फ्रेंड सर्कल नहीं था। तो जब ये फ़ेज़ आया ना, तो वो अपने पुराने फ्रेंड्स का भी नंबर माँग रहे थे कि ये मुझे उससे बात करनी है, वीडियो कॉल करनी है। तो वो चीज़ें ना बहुत ही ऐसी थी कि क्या हो रहा है? तो डेफ़िनेटली जो सब्सटेंस है वो भी बढ़ जाता, और छोटी-छोटी बात पे गुस्सा करना, गुस्सा नो डाउट उन चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी। इरिटेशन, नींद नहीं आना, और मतलब और मैम ये मैं बताती हूँ कि मेडिसिन्स ना बहुत हेल्पफुल हैं। ये चीज़ मैंने ऐसे नोटिस की, अब मुझे ये रियलाइज़ हुआ जब 2021 में उनका एपिसोड आया, जैसे आप बोले ना साइकोसिस, है ना? तो वो बहुत ही एक थिन लाइन रह गई थी। यस। बहुत ही थिन लाइन रह गई थी, क्योंकि मुझे थोड़ी, अब मुझे वो रिलेट होती हैं वो चीज़ें, शायद उनको याद भी नहीं होगी कि उन्होंने ये चीज़ें बोली थी। अब मुझे लगता है कि अगर उस टाइम मेडिकेशन ना ली होती, तो आज वो हम स्टेज संभाल और ही नहीं सकते संभाल नहीं पेशेंट को। सकते थे। वो बहुत ही थिन लाइन रह गई थी मैम। और मेडिसिन्स नो डाउट 2 इयर्स वो ऑन एंड ऑफ चलती। जैसे पेशेंट एक्सक्यूज़ देता है कि ये प्रॉब्लम हो रही है, वो हो रही, छोड़ दी, ले ली। तो डिप्रेशन का फेज भी आपने देखा? डिप्रेशन का फेज़ देखा, बट मैम वो बहुत कम टाइम पीरियड के लिए आता था। क्योंकि अल्कोहल चला जाता चला था जाता था। और वो ट्रिगर कर ट्रिगर देता था। अल्कोहल क्या, हम डॉक्टर के पास जाते थे साइकेट्री के, वो ये बोलता कि आपको अल्कोहल नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी ये कभी किसी ने नहीं बताया। कभी भी हम बोलते थे, मैं पूछा बहुत बार मैंने, मतलब शायद मेरे अंदर ये चीज़ थी कि मुझे जानना था कि ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक मैंने एक पर्सन देखा था कुछ टाइम पहले, और एक मैं अब देख रही थी, है ना, कि ऐसा तो इंसान था ही नहीं ये। तो वो चीज़ें बहुत थी, वो बताते, वो बोलते अल्कोहल नहीं पीना, जहाँ वो बोलते थे कि उन्होंने एक, मुझे याद है एक स्टेज बोली थी जो मुझे बहुत डर लगा। डॉक्टर ने कहते कि एक टाइम अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक वो स्टेज आएगी जो, अगर आपका मेनिया फेज़ है या डिप्रेशन जो भी फेज़ होगा, वो रेसिस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद बिल्कुल। इलाज नहीं है। बिल्कुल। सो वो फोर्थ चीज़ स्टेज में इलाज पॉसिबल नहीं है, दैट इज राइट। हाँ, तो फिर मुझे वहाँ से ये चीज़ आई कि नहीं, मतलब ये वहाँ मैंने पढ़ भी लिया था कि ये चीज़ ट्रीटेबल है, ऐसे है, क्योंकि मैं ना वो चीज़ें जो शायद अपने यहाँ सोसाइटी में इतने ओपनली नहीं बोलते, तो वहाँ फॉरेन की कई वीडियोस थी, जो एक सोसाइटी नहीं बनी होती यस। में, यस। है ना, मैंने वहाँ से ये चीज़ें पढ़ी और मुझे वहाँ से आपने ही लोगों कनेक्ट, को मतलब शेयर करते हाँ, हुए मैंने सुना सुना होगा। कि हाँ ठीक हो सकते हैं। तो फिर देख, अगर मैं सोचे कि ऑन एफ, अब उन्होंने मेडिसिन्स नहीं मतलब छोड़ते, अब खुद माँग के लेते हैं, वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं मैम, रिकवरी में सारी चीज़ें जो सबसे ज्यादा आपको, सॉरी, सबसे ज्यादा मतलब इस बीमारी से आपको क्या पेन हुआ? मतलब व्हाट ऑल हैव यू लॉस्ट? लॉस्ट में सबसे पहली चीज़ जो थी वो रिलेशनशिप था, हस्बैंड वाइफ का। एक कनेक्शन होता है वो नहीं था। इमोशनली आप अवेलेबल नहीं होते हो ना, आप मतलब आप खाना खा लिया नहीं खा लिया ये चीज़ें अलग है, एक इमोशन बॉन्ड होता है, वो चीज़ मिसिंग होती है। और मैम जो फिजिकल पेन होती है ना, वो शायद इतनी नहीं होती, अग्रेसिव होता है पेशेंट, वायलेंस जो भी करता है, बट जो एक मेंटल पेन होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है। वो आपको लगता है कि अब कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपको आगे कुछ दिखता ही नहीं है। ऐसी सिचुएशन आ जाती है आपकी लाइफ में, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आप किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते, और कई बार हम वो चीज़ें नॉर्मलाइज भी कर रखी होती हैं सोसाइटी में कि नहीं ऐसे ही होता है। बट मैं एक चीज़ यही बोलूँगी सबको कि जिस चीज़ को भी आप बीमारी मान लोगे ना, उसका डेफिनेटली 101% ट्रीटमेंट हो जाए, ये कोई भी बहुत चीज़ है। इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। मतलब आप आज दोबारा बोलो स्टेटमेंट को। मैं मतलब ये चीज़ है मैम, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है कि आप किसी भी चीज़ को, आपके पेशेंट को, आपको कोई भी चीज़ करेक्टर डिफेक्ट लग रहा है, अगर आपको उस चीज़ को बीमारी में, कोई भी चीज़ है, एनीथिंग आपको लग रहा है अच्छा ये भी बीमारी हो सकती है, चाहे वो गुस्सा, एग्रेशन, इनफिडेलिटी, कुछ भी है, एनीथिंग जो भी आपको लगता है, उसको बीमारी मान लोगे तो 101% उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, और वो डेफिनेटली चली जाती है। आप सोचोगे कि ये इंसान अब ये इंसान है, और वो उसकी जो पर्सनैलिटी होती है ना मैम, वो पहले से बहुत बेटर होती है। कि जैसे मैंने अब बोलूँ कि मैंने उनको 8 इयर्स पहले जो हमारी मैरिज हो, उससे भी बेटर पर्सन है आज, उससे भी बेटर तो पर्सन है। ये जो डिसीजन था, जैसे क्या आपके पेशेंट, जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है ना, हमारी फैमिलीज कहती हैं ये नहीं मानता, ये नहीं सुनता, इट्स ओके, ये इलाज नहीं कराना चाहता,
क्या आपको भी सेम इशू आया था? क्या आपका पेशेंट यहाँ पे विलिंगली आया नहीं था? मैम, विलिंगली नहीं आया था, और ये मैं ओपनली बोलती हूँ कि उनका पिकअप हुआ था। वो अपनी मर्जी से बिल्कुल नहीं आए थे, और हम 7 दिन इसी हॉल में रहे थे, वो रूम में भी नहीं जाने देते थे। बहुत गुस्सा करते थे, बहुत एग्रेशन था, बट मुझे ये चीज़ पता थी। उनको बोलो थोड़ा टाइम। तो वो बहुत गुस्सा करते थे, बट मुझे पता था कि वो जो कर रहे हैं ना, वो एक बीमारी है। अभी आएगा, बोलो मतलब थोड़ा मैंने, टाइम जैसे मैम बोलते हैं ना कि अपने पेशेंट को और अपने हस्बैंड को अलग अलग पर्सन, मैं यही मानती हूँ कि जो मेरे हस्बैंड है, ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन, ही इज़ वेरी केयरिंग, ही इज़ अ गुड फादर, ही इज़ अ गुड सन, बट उनको एक बीमारी है जो वो चीज़ें करवा देती है जो वो नहीं करना चाहते। हाँ। फैमिली का ऐसे है मैम कि जैसे मैंने बोला ना, मेरी डिनायल थी, तो मेरी डिनायल टूटने में भी 2 साल लगे थे। तो हम डिनायल समझते हैं सब क्या होता है? ये हम सबके अंदर है। क्या होता है डिनायल? हम नहीं ना मानते मानना। बीमारी। सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ आंखों के सामने बीमारी पैदा हुई, बड़ी हुई, सब कुछ दिख रहा है, मगर बीमारी नहीं मानना। सब कुछ मानना है बीमारी छोड़कर। राइट। है ना। और मैं जब, अब फैमिली क्या है कि जैसे मैंने मान लिया, तो मेरे साथ मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इन्होंने। तो हम 7 दिन, मैं और मम्मा यहाँ रहे थे, हमें पता था कि फादर इन लॉ थोड़े वीक है, एक इमोशंस होते हैं ना फादर सन के, तो वो चीज़ थी। उसके बाद जब वो हम हेरिटेज शिफ्ट हुए, तो हर मीटिंग में हम आते थे, हर सैटरडे मीटिंग जो थी वो हम मीटिंग में आते थे। हाँ, कई बार हम बड़े निराश होके भी जाते थे। पेशेंट कई बार गुस्सा करता है, बट वो उसकी बीमारी है, वो पेशेंट है, पेशेंट कर रहा है। मैंने कभी नहीं बोला कि मेरा हस्बैंड कर रहे हैं। रिहैब का जो एक कॉन्सेप्ट है, सेंटर भेजना, सेंटर सेंटर नाम से ही डर जाता है इंसान, है ना? तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं हुई कि मेरा हस्बैंड सेंटर में जा रहा है? आंटी, आपको कि मेरा बेटा जा रहा है सेंटर में, आपने उस टाइम क्या सोचा जब बोला कि इनको रिहैबिलिटेशन कराना पड़ेगा? ਮੈਡਮ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਹੈ ਹਰਮਿਟੇਜ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੀ ਹੋ ਜੇ। मैम ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਫੀਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਦੇ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਹਰਮਿਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ Sir, ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਐਸ ਵੀ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। मैम वो चीज़ ना ये होती है कि ना, जब आप ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लेते हो ना, फिर नहीं होता। ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस क्या होती है? हम ग्रेस तो एक्सेप्ट ही नहीं करते ये ग्रेसफुल वर्ड। ग्रेसफुल, जैसे वो 2 इयर्स का जो पीरियड था वो मैंने निकाला, वो मेरी पेन थी। वो सारी चीज़ें हटाने के बाद आपका बॉटम लग गया, अब आपको पता है आपके पास कोई हल नहीं है कोई इसका। हल नहीं। सो मैंने उस चीज़ को, और बाकी ये चीज़ है ना, जब मैं यहाँ आई थी तो मैंने 1 साल पूरी मीटिंग सुनी थी। Yes. मुझे था कि मुझे ये भी पता था ये केमिकल्स होते हैं, ये रिहैब का, आई नो एवरीथिंग, मतलब मुझे ये सारी चीज़ें पता थी, और मैंने इस चीज़ आप को रिसर्च करके आए थे पूरा पूरी? रिसर्च। और उसके बाद यहाँ आने के बाद मुझे जो भी डाउट थे मैम, मैंने किसी से नहीं पूछा एक्सेप्ट श्वेता मैम एंड आंचल मैम, रिगार्डिंग मेडिसिन, रिगार्डिंग रिहैब, रिगार्डिंग फूड, रिगार्डिंग एवरीथिंग। एंड टिल नाउ अगर मेरे कोई भी प्रॉब्लम आती है ना मैम, कोई भी चीज़ की, कोई मेडिसिन से रिलेटेड या कोई एपिसोड लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, आई डायरेक्टली कॉल श्वेता मैम और बबलीन मैम। वो मुझे बोलते हैं ये टैबलेट नंबर 4 कम कर दो, ज़्यादा कर दो, आई डू सी। मैंने नहीं पूछा क्यों, कैसे, कब, नथिंग, कुछ भी नहीं। अभी भी मेरे जो पेशेंट का मतलब फॉलोअप था वो नेक्स्ट वीक था, कुछ काम था तो हम 1 वीक पहले आए। मतलब हम जो भी चीज़ प्लान करते हैं वो पहले ट्रीटमेंट को रख के, कोई इवेंट है वो भी पहले ट्रीटमेंट को रख के देन। मतलब अब जब हम यहाँ पे इनकी शेयरिंग से पहले प्रिस्क्रिप्शन की बात कर रहे थे जो आपके पीछे बोर्ड पे है, तो अगर 2 इयर्स आज हो गए हैं तो इसको फॉलो किया जा रहा है। अगर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, वी विल बी आउट ऑफ प्रोग्राम। रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग आपको लगता है क्यों इम्पोर्टेंट है? मैम देखो, जो मेडिसिन्स थी वो तो हम 2 ईयर से पहले भी खा रहे थे, तो मुझे था कि मेडिसिन्स तो होगी, बहुत हो गया, मतलब मेडिसिन तो खा ही रहे हैं, छोड़ दी, खा ली, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, बोलते ये खा लो। तो मैंने ये चीज़ देखी कि जो प्रॉब्लम है वो बिहेवियर में है, और बिहेवियर के लिए कोई मेडिसिन नहीं है, गुस्से के लिए तो कोई मेडिसिन नहीं है ना। तो डेफिनेट, और मुझे ये था क्योंकि ना मुझे मीटिंग सुन के ये पता चल गया था कि पेन मेरे अंदर नहीं है, पेन पेशेंट के अंदर भी बहुत ज़्यादा है, तो उसका प्रोसेस होना दिस बहुत इज अ ज़रूरी वेरी है। इंपॉर्टेंट थिंग जो हम रियलाइज करते हैं यहाँ पे आके। कि जब मुझे ऐसे लगता है कि इनके अंदर बहुत पेन है, मुझे जब बोलते थे ना कि
देखो अब पेशेंट अल्कोहल ले रहा है ना, उसके साथ वो नींद की गोली भी ले रहा है कि मुझे नींद नहीं आ रही, और वो सारी रात सो भी नहीं रहा, तो इट्स वेरी पेनफुल। हमें एक रात नींद ना आए तो हम कितने आई परेशान थिंक हो जाते हैं। इसीलिए जब यहाँ पे सर, दैट इज वाई सर वांट्स कि जब यहाँ पेशेंट एडमिट होता है तो फैमिली साथ रहे, क्योंकि हमें हमेशा होता है ये जानबूझ के कर रहा है, कोई बीमारी नहीं है, ये परेशान नहीं हो रहा, पर रहते रहते हम देखते हैं कि पेशेंट कितनी पेन में होता है, बहुत pain में। विड्रॉल्स में, नींद नहीं आ रही, कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। नहीं मैम, हमें छोटी सी चीज़ की क्रेविंग हो ना तो हमें बहुत मुश्किल हो जाता है। आप बहुत इंटरेस्टिंग वे में सुन रहे हो, कुछ पूछना है आपने? यस, आपकी कुछ और भी जो बातें हैं जो हम नहीं शेयर कर रहे वो भी सेम है। हाँ यही ना, मैं यही बोल रही हूँ कि जैसे इन्होंने बोला हेमिटेज, वो रेडी हुए थे, उनको जब बताया आप किस आपने आपने बोला ना यहाँ भी पिकअप ही हुआ था, हॉस्पिटल भी यही पिकअप। तो हाँ, बोल यहाँ रहे से भी हुआ नहीं। था, और जब रिहैब गए थे तब भी उनको नहीं पता था। हाँ वही मैं बोल रही ना थे, बट जब आप उनसे मिले फर्स्ट मीटिंग में, उनका रिएक्शन क्या था? उनका देखो, उनका रिएक्शन जब वो गए थे सैटरडे को गए थे, ठीक है, हम सैटरडे को नहीं मिले, हम वहां से जाके बबलीन मैम से मिल के आ गए। उनका संडे को कॉल आया, तो उनका पहला वर्ड था कि आपका ब्रेन वॉश कर दिया गया है। हाँ, मेरे को यही हाँ ना, तो हमने बोला मैंने वो हमेशा बोलते थे कि मैं ज्यादा करूंगा। मैंने कभी भी क्या किसी क्या बोलते थे, मतलब आपको डराने के नहीं, लिए? डराने बताओ। के लिए तो आप यही तो चलो रिसर्च के आए, सारे लोग रिसर्च करके नहीं आते ना, तो क्या क्या कहते थे देखो वो? मैम, पहले तो ये पेशेंट बोलता है कि ऐसे छुड़वा लोगे। हाँ, हाँ, ऐसे छुड़वा लोगे हाँ, क्या? जब मैं ज्यादा करूंगा कुछ भी, तो मैं उनको सिर्फ एक चीज बोलती थी कि मैं जब यहाँ आई थी ना, मैंने किसी को भी यहाँ नहीं बोला था, किसी डॉक्टर काउंसलर, क्योंकि इनकी अल्कोहल छुड़ा दो। मैंने हमेशा उनके सिम्टम्स ही बताए थे, और मेरे लिए वो सिम्टम्स को ही ट्रीट करना था, दैट्स द ट्रीटमेंट। नहीं, मेरे हस्बैंड भी जैसे आपके हस्बैंड ना शेयरिंग नहीं करते, बिल्कुल चुपचाप रहते हैं, कुछ भी किसी से कुछ नहीं बोलते। अब भी मैं बोलती हूँ ना भी बोलो मैम से, कुछ शेयर करो, कुछ नहीं। नहीं, वो मैम अभी उनकी आपको कैपेसिटी बोला नहीं ना है। सक्षम ने, सक्षम कैसी लगती थी ये मीटिंग तुम्हें पहले? बकवास। तो ये पेशेंट को पहले ऐसे लगता होता है, अब देखो कितने आराम से बैठ के सुन रहा है। हाँ। इस टाइम पेशेंट उस कंडीशन में नहीं होता है नहीं ना। मैम, उसको जब थोड़ी रिलीफ मिलती है ना पेशेंट को, हाँ, तो फिर उसको अच्छा लगता है। जैसे मैंने जब मीटिंग सुनी तो मुझे रिलीफ मिला, तो मैंने कनेक्ट किया। जब मैं यहाँ पे जब सर बोलते हैं, सारे बोलते हैं मी फर्स्ट, फैमिली फर्स्ट, पहले फैमिली अपने ऊपर काम करे, तो आप लोगों को बुरा नहीं लगता था कि हमें क्यों बोल रहे हैं, हमें क्या काम करना है? मैम, वो पता नहीं, वो फेज आया नहीं, मेरे में नहीं आया, क्योंकि मुझे मतलब इतनी पेन हो चुकी थी ना मैम कि मैं नम हो चुकी थी। मतलब एक होता है ना कि आपके पास ऑप्शन होती है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी, मतलब कोई भी ऑप्शन न, मतलब ऐसे था कि जिंदगी खत्म है, मतलब वो स्टेज थी। सर, इन्होंने आपके आने से पहले ना एक लाइन बोली है, मतलब इट हैज अ वेरी डीप मीनिंग, वो बीमारी और इलाज की। हाँ, मैंने ये बोला है सर कि जिस चीज़ को भी आप बीमारी मान लोगे, कोई बिहेवियर इशू, मूड इशू, अगर उसको आपने बीमारी मान लिया तो उसका 101% ट्रीटमेंट हो जाएगा। ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया। मतलब मैंने अपने हस्बैंड के जो जो सिम्टम्स को बीमारी मानना है ना, आज वो सारे सिम्टम्स चले गए हैं, मतलब डाउन हो गया। हम ये नहीं कहते कि बीमारी चली Yes. गई है, It's a process. इट्स अ प्रोसेस, बट आज उनके अंदर, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इलाज से इतना फर्क पड़ सकता है। मतलब मुझे था 70-80, बट ही इज़ अ वेरी, मतलब उनके अंदर जैसे होता है ना, मुझे ना याद है श्वेता मैम ने एक मुझे चीज़ बोली थी कि जो आपका पेशेंट है ना, वो एक हीरा है, हीरा है, और उसके ऊपर ना शुरू में सुन के तो गुस्सा आता है, क्या बोल रहे हैं? हाँ, उन्होंने बोला था कि वो एक हीरा है सक्षम और मैम भी उसके बहुत ऊपर ना एक परत जम गई है, और जैसे वो ट्रीटमेंट में रहेगा वो परत परतें हट होते। जाएगी और एक हीरा निकल आएगा। और आज मेरा हस्बैंड वाकई में एक हीरा। हाँ जी, देखो, बाइपोलर इनके हस्बैंड को भी, बाइपोलर आपके। हाँ जी, हाँ जी, आप पूछो। हाँ, पहले फैमिली। हाँ, मुश्किल होता है इस प्रेस टाइम। करना है क्या? नहीं नहीं, दैट्स ऑल, जस्ट ओनली फॉर लाइव। इनिशियल सिम्टम्स स्टार्टिंग से थोड़ा सा डिटेल में बता सकते हो कि स्टार्टिंग क्या में क्या क्या होता था? मतलब स्टार्टिंग में देखो ये चीज़ थी, एक तो टिकाव नहीं था सर, बिल्कुल भी टिकाव नहीं सी, एक जगह नहीं बैठते सी, इन्ना चलते सी कि पैਰਾਂ 'ਚ swelling आ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। एंड मतलब सारा दिन ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਆ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈ, ਆ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈ, ਆ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈ, मतलब ब्रेन जो सी ना 24 आवर्स
ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣਾ, ਐਲਕੋਹਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣਾ, ਗੁੱਸਾ, ਐਗਰੈਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ। ਐਂਡ ਕੋਈ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਫਾਦਰ ਸਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ, ਐਗਰੈਸ਼ਨ, बहुत ज़्यादा खाना, बहुत ही खाना, ईटिंग, मतलब ये चीज़, मतलब जो भी चीज़ थी ना हम अपनी डे टू डे लाइफ में करते, वो हर चीज़ बहुत ऊपर चली गई। मतलब बाइपोलर आप पूछ रहे थे ना, आप डिप्रेशन का ज्यादा पूछ रहे थे, तो लाइक माय हस्बैंड वाज शेयरिंग, इनके हस्बैंड को भी बाइपोलर है, मेरे हस्बैंड को भी है, तो मेरे हस्बैंड के डिप्रेशन के भी बहुत फेजेस आए। तो जब वो डिप्रेशन में जाते थे ना, बिल्कुल उल्टा होता था, एनर्जी बिल्कुल खत्म, मतलब अगर वॉशरूम जाना है उसके लिए भी इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, मतलब ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि पंखा नीचे गिर जाएगा, मेरा पियोन मेरा बिजनेस ले लेगा, सब कुछ लाइफ में खत्म है। कई बार मैं देखती थी कि कपड़े चूज करने हैं ना, अब नहा के पहनना है, तो अब वो अलमारी के सामने ही खड़े हैं और उनको समझ नहीं आ रहा मैं क्या पहनूं। और मैम ये चीज़ मतलब भी सुसाइड की बातें कि सब खत्म है, होपलेसनेस, जो आपको अच्छा लगता है वो भी नहीं आप कर रहे, आप टीवी के सामने बैठे हो मगर चैनल ही चेंज करी जा रहे हो, कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा किसी चीज में। और मैम एक चीज सिम्टम और था, उन्होंने ना फोन पे अपने रिकॉर्डिंग लगा दी थी, जिससे भी वो बात करते इसको रिकॉर्ड कर लेते और बाद में सुनते थे। सस्पिशियस हो हाँ, जाना, ये चीज़ भी रिकॉर्डिंग थी। कर लेनी, कि मतलब ये भी मेरे बारे में गलत बोल रहा है, गलत कर लेगा, मतलब ये सारे सिम्टम्स। और शॉपिंग, एक चीज लेने जाना तो वैसे हाँ, 10 चीजें ले आना। बिल्कुल। 10-10 कपड़े जैसे एक डाल के गए हैं ना, गाड़ी में बैठे, फिर आए चेंज किया, फिर आए फिर change। आए चेंज किया, शॉपिंग करने जाते हैं जो अच्छा, मैं वहां से ले तो आना। डोर बेल बजती रहती थी तो वो तो अमेजोन से एक पैकेट आ रहा है, हाँ, फिर नहीं दूसरा मैम, पैकेट आ रहा है, तीसरा आ मैम रहा है, लेके खुद आ रहे शॉपिंग। हैं, वो गाड़ी से निकाल नहीं रहे हैं, जी अच्छा नहीं, मुझे नहीं पहनना, हाँ। उसे गाड़ी साफ कर रहे हैं। मेरे को ये भी ये क्या हो रहा है, वैसे ही वो बड़ी बहुत सारी शर्टें ऐसे ही पड़ी रहती, ये नहीं, खुद लेके आते हैं, वो नहीं। और ऊपर से अल्कोहल, ऊपर से मतलब केमिकल आपके Chemical। ऑलरेडी खराब है, तो डीजल की गाड़ी में अब पेट्रोल भी डल गया, आप सोचो। तो दोनों चीजें ही बढ़ा देती बढ़ा हैं। देती है ना वो, मतलब एक ही चीज है, अल्कोहल लोगे तो बाइपोलर आएगा, बाइपोलर है तो अगर उसका हाई एपिसोड है, आप मेडिसिन छोड़ दो, जा मतलब फॉलो अप। अब मैम इतने सालों हमने कोई भी फॉलो अप नहीं मिस की, मतलब ये एक बात दिन पहले बिल्कुल है, इन्होंने मतलब अब 2 इयर्स अगर हो रहे हैं, कोई दवाई नहीं, कोई मीटिंग ना हो मिस हो, कोई ऐसा मीटिंग नहीं है जिसपे शरण का वो ना आया हो, रिमार्क ना आया हो। मीटिंग नहीं चल रही है तो फटाफट की मीटिंग क्यों नहीं आ रही है, लिंक क्यों नहीं आ रहा है, आवाज क्यों नहीं आ रही है, मतलब बहुत ही हाँ मैम, चाहे कितना भी डेडिकेटेड वे वीजा में। है, बच्चे के एग्जाम हो, कुछ भी हो, बट मैं बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि मैंने 2 साल तो यही हो गया और 1 साल वो, 3 साल में एक सिंगल मीटिंग भी 5 मिनट की भी मिस नहीं, नॉट इवन अ सिंगल। और मैं डेली इन्वेंट्री लिखती हूँ, जिसमें मुझे लगता है यस, कि मेरे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीजें ये मेरे, इनिशियल स्टेज में आपने शेयर करी हाँ हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरे अंदर ही थी, तो वो मैं देखती हूँ कि इस चीज़ पे मैं कैसे काम कर सकती हूँ। और मैं अपने बच्चे को लेके भी इस चीज़ को आई एम वेरी ओपन कि कैसी, बिकॉज हमारा सारा फोकस होता है कि पेशेंट ये करता है, पेशेंट वो करता है, आपने क्या मतलब रियलाइज करा कि आप में क्या मतलब वीकनेसेस थी? वीकनेस में पहले तो मैंने ये चीज़, किसी ने यहाँ बोला था कि सर ने बोला था, जसबीर सर ने, कि पेशेंट नू ना ठीक करो ना, पेशेंट नू ठीक होने दो, है ना। मैंने ये दैट मीन्स चीज़, हम कंट्रोल कर रहे हाँ होते वो हैं। चीज़ मैंने अब कभी नहीं उनको किसी चीज़ के लिए बोला। जो मेडिसिन है चलो वो चीज़ है जो रिकवरी की, वैसे नहीं कोई भी चीज़। दूसरी चीज़ है कि मैम हम 100% करते हैं हर चीज़ में, और मेरे हस्बैंड भी मुझे बोलते हैं कि 100 नहीं अपनी करते हम, कितने 80% करते हैं हम? 500। 500% करते हैं। क्योंकि ना फिर पेशेंट की, जैसे ना कल परसों थोड़ा लो थे तो वो बोले कि डोपामीन नहीं बन रहा, उस दिन कोई काम नहीं किया तो फिर डोपामीन, तो हमारे घर में बात भी ऐसी होती है कि अब डोपामीन नहीं बन रहा। और जब लगे कि कम है तो हम बोलते 4 से नीचे हो, 6 से ऊपर, हमारे घर में बात ही अब ऐसी हाँ, होती है। हमारे घरों में भी ये बात है, फाइन थैंक यू की जगह हम बोलते हैं 4 to 6, 4 to 6, हाँ, हाँ, और दैट सर ने मीन्स एक चीज़ एवरीथिंग बोली इज थी ना ओके। कि ये नहीं बोलना कि आई लव यू, ये बोला आई नीड यू, ये चीज़ है। ये मतलब झूठ नहीं बोल रही कि ये मीटिंग नहीं सुनती, ये सुनती है एंड देन शी रिमेम्बर्स एवरीथिंग। वंडरफुल, वेरी। हाँ जी, क्वेश्चंस? ये तो हमें रिवाइज करा रहे हैं। हमें रिवाइज करा रहे हैं। हाँ जी मैम। मैम वो चीज़ है कि पेशेंट ना, जैसे फर्स्ट 1 ईयर होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो एक लो फेज होता है, उसके अंदर ना बहुत सारी क्रेविंग्स आ रही होती है, जो होते हैं, सर बोलते हैं टेक्निकली हम बोल रहे हैं तो उसमें डोपामिन बन नहीं रही होती अभी।
मतलब मैंने इसको चीज़ को ऐसे ही लिया साइंटिफिकली मैम, मैंने हर चीज़ को ऐसे बोला कि अब मेरे पेशेंट के अंदर डोपामिन बन नहीं Yes. रही है। मैंने ये नहीं पूछा कि मेरे हस्बैंड लो है, चुपचाप बैठे हैं, या ज़्यादा सो रहे हैं, ज़्यादा खा रहे हैं। ये चीज़ है कि वो बीमार है, अभी डोपामिन नहीं बन रही है उनके अंदर। तो उनको कई बार वो लो होते हैं, चुपचाप होते हैं, तो हमारे अंदर ना वो चीज़ आती है कि हाँ, ये चुपचाप बैठे हैं, बेचारे सो ही रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे। तो वहाँ अपने आप को डिटैच कर दो। पेशेंट को जो पेन है ना, उसको हटाने दो, और आपकी जो एंजाइटी हो रही है ना देख के, उसको गो थ्रू करो, उसको अवॉइड नहीं करो, उसको गो थ्रू करो। जब आप उसको गो थ्रू करते हो ना, तो आप भी, आपके अंदर भी लगता है ये, पहले मुझे बहुत डर लगता था रिलैप्स ना हो जाए, अब मुझे लगता है कि अगर दैट्स अ पार्ट ऑफ अ ट्रीटमेंट, अगर हो जाएगा, दिस इज द प्लेस वेयर वी हैव टू कम। और मैं मैम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं हर चीज़ नोट करती हूँ, और मुझे उसके अंदर इतना सा भी सिम्टम दिखता है ना, आई कॉल श्वेता मैम। मतलब मैं किसी से ये नहीं पूछती कि अपना दिमाग लगाऊं, मैंने अपना दिमाग बंद कर दिया बिल्कुल। मतलब जो ठीक है, हमें और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट वी आर नॉट अ डॉक्टर नहीं, हमें कुछ नहीं पता इसकी चीज़ के। हम ऐसे इलाज करवाएं कि हमें कुछ भी नहीं पता। That is graceful acceptance. मतलब मैंने ऐसे मान लिया कि मुझे कुछ भी नहीं पता, कि अगर मुझे लग रहा है कि थोड़ा कुछ भी हो रहे हैं, सिम्टम्स आ रहे हैं, तो वो मुझे बोल देते हैं ना कि 3 नंबर वाली बंद कर दो, कम कर दो, ज़्यादा कर दो, तो बस मैं वैसे ही करती हूँ। मैं ऐसे नहीं पूछती कि क्यों है ये, किसकी मेडिसिन है, क्योंकि ये मैंने 2 साल किया था मैम। मुझे और मेरे पेशेंट को सारी मेडिसिन्स के नाम पता थे, हम सारी गूगल करते थे। तो श्वेता मैम ने और बबलीन मैम ने बोला था कि आपको ये Google चीज़ है। नहीं करना, बंद कर दो ये। तो जब हम स्टार्टिंग में मेडिसिन लेके जाते थे ना, तो मेडिकल से ना मार्कर से वो सारी चीज़ें कटवा के लेके जाते थे कि जहाँ नाम ना पता हो। ये वाह चीज़ जी वाह, ये चीज़ कटवा के आपके अंदर वो चीज़ें जाती नहीं है। this is new this thing, yes. क्योंकि ना मुझे डर था, क्योंकि अपने अंदर भी अर्ज आती है, क्रेविंग आती है कि चेक करें ये किस चीज़ की मेडिसिन है। और एक चीज़ और है मैम, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, आप उसका जो साइड इफेक्ट पढ़ लोगे ना, तो आपके अंदर वो साइड इफेक्ट पक्का ही आएगा। अगर पक्का। पेशेंट खुद ही Side सर्च करे फिर क्या करें? Beautiful, नहीं, wonderful. मैंने किसी चीज़ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਮੈਡੀਸਿਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ फिर वो आ ही एक्सपीरियंस जाएंगे। किया मैंने, मुझे कोई प्रॉब्लम हुई फिर थी, हमें तो मैंने लगने लगेगा। मेडिसिन पढ़ी, उसमें लिखा था आपको नॉजेटिक फीलिंग होएगी। मैंने पढ़ लिया, 10 मिनट बाद मुझे ऐसी फीलिंग होने कि लगी। हाँ खुद ही सर्च करी मैम, आप ना इन्होंने ऊपर से मिटा ही दिया ना, पेशेंट के लिए भी मिटा दिया, अपने लिए भी मिटा दिया। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको वो प्रिस्क्रिप्शन तो देते नहीं है, सिर्फ वो मेडिसिन देते हैं जो 5-10 डेज के बाद आपके फॉलोअप्स होते थे। तो मैम आज तक भी मेरे पेशेंट को मेडिसिन नहीं पता कहाँ होती है, मैं निकाल के देती हूँ, हाथ में ऐसे रखती हूँ, वैसे खा लेते हैं बस। मतलब इन ट्रीटमेंट पेशेंट भी करना शुरू होते हैं देयर रिकवरी। मेरे घर में 2 तरह के पेशेंट हैं। मेरे हस्बैंड को आज तक नाम नहीं पता, ना पूछा। और जो बेटा है वो मतलब ये नहीं कहता कि क्यों मिल रही है। अगर मैंने 5 निकाली है ना, 6 होनी चाहिए, तो फटा मम्मा एक गोली मिस है, डालो, दोबारा देखो और डालो। तो व्हेन यू आर इन प्रोग्राम, तो हमारे पेशेंट भी पार्टिसिपेट करते हैं। नहीं मैम, वो फिर कॉपरेट कर, देखो स्टार्टिंग में वो सारी चीज़ें आती हैं कि अब देखो 2 इयर्स हो गए, अभी तक मेरे पेशेंट के पास फ़ोन नहीं लिया उन्होंने, पैसे नहीं है उनके पास, वो अकेले। बड़ी बात है ये देखो। किया। मैम देखो स्टार्टिंग में मैं जब किसी को बोलता हूँ ना, आपके लिए फोन नहीं सर आप यहाँ पे आओ ना, आप नहीं, कंटिन्यू मैं कर। यहाँ नहीं पे नहीं आप करो, आप नहीं, करो। आओ सर, आओ सर। मैं जब किसी को ये बोलना होता है ना कि आपने 1 साल के लिए या 3 मंथ्स के लिए फ़ोन नहीं रखना, मैं बड़ा डर डर के बोलता हूँ। और पैसों के लिए तो बड़ा ही डिफ़िकल्ट है बोलना। तो मैं सोचता हूँ कि ये नाराज़ ही ना हो जाएँ कहीं मेरे से। ये आपने कैसे किया कि फ़ोन और मनी ना देनी हस्बैंड को, ये कैसे किया आपने? सर पहले तो ये थी कि हम 5 मेंबर है घर में, तो पांचों प्रोग्राम में थे, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, हम सारे थे सेम पेज। कोई ऐसे नहीं था कि अगर एक डिसीजन है कि ये चीज़ नहीं करनी तो वो चीज़ नहीं होनी है, ये चीज़ थी मैम। और दूसरा, पेशेंट करता है तो उसको ना सुन लो, अगर वो कुछ कह रहा, गुस्सा कर रहा है ना, उसको सुन लो, आप नहीं आगे से उसको रिस्पॉन्ड करो, है ना। और दूसरी चीज़ है कि मैम उन्होंने बोला, उनको बोला तो यह था कि मैम ने बोला था कि उनका फ़ोन नहीं देना, मम्मा का फ़ोन अगर उनको चाहिए कुछ भी, बट उनको उस पर इंटरेस्ट नहीं बना।
तो वो धीरे धीरे वो चीज़ें जाती गई। और रही बात पैसे की, कई बार मान उन्होंने मुझे याद है एक बार स्टेटमेंट बोली थी कि ऐसे तो सारी उम्र मेरे हाथ में पैसा ही नहीं आएगा, है ना, कि वो चीज़ पेशेंट को फील होती है। क्योंकि अगर आप 29-30 ईयर्स के हो और आपकी पॉकेट में पैसे नहीं, इट्स अ बिग, मैम हम नहीं कर पाते, मतलब मैं ये चीज़ बोलती हूँ कि हम शायद उस स्टेज में होते, हम नहीं कर पाते वो चीज़। और वो बोलते थे, हम सुन ली उस चीज़ को, और वो चीज़ काउंसलर के साथ शेयर कर लो। मतलब वो जो बोलते थे वो एज इट इज़ ही मैं मैम को बोल देती थी कि मैम ऐसे ये चीज़, और वो पेशेंट मेरा इस चीज़ पे बहुत नाराज़ होता था कि मैं हर चीज़ मैम को बता देती हूँ। बट वो चीज़ क्या थी, मैंने वही चीज़ बोली ना, जिस चीज़ को आप बीमारी मान लोगे उसका इलाज हो जाएगा। ये बात बहुत बड़ी है, क्योंकि अक्सर जब लोग मेरे पास आते हैं ना, तो वो अपने पेशेंट की 100% ईमानदारी से कंडीशन बता नहीं पाते, थोड़ी कम कर देते हैं, थोड़ी इधर से, जब गुस्सा होता है थोड़ी बढ़ा देते हैं, जब प्यार आता है तो थोड़ी कम कर देते हैं। तो जब मैं कहता हूँ अच्छा आपके साथ ये हुआ, नहीं 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 नहीं, वैसे ये बहुत अच्छा है इंसान, ये बहुत अच्छा है, लेकिन इसने ये थोड़ा सा काम किया है, फिर थोड़ा सा लगा लेते हैं। तो मेरे को समझ आ जाती है कि ये मतलब कहीं ना कहीं भी इनको तकलीफ हो रही है मेरे को बताने में। सर उसके लिए ना जो डाटा इंटरवेंशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमने तीनों ने, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मैंने, हमने बहुत डिटेल में डाटा इंटरवेंशन, ये ईच कहती एंड है एवरीथिंग। डाटा इंटरवेंशन डाटा। ये चीज़ सर जैसे हम बोलते हैं ना कि पेशेंट को बताओ कि क्या बीमारी थी, क्या इंसिडेंट्स हुए थे। तो वो चीज़ क्या होता है कि जब पेशेंट एक सब्सटेंस में होता है या एक एपिसोड में होता है ना, तो उसको वो चीज़ें नहीं पता होती कि ये चीज़ मैंने करी भी है, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें पता लगी कि अच्छा मैंने ऐसे भी किया था, ऐसे भी बोला था। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो हमने फर्स्ट वीक में ही कर दिया था, जो फर्स्ट वीक थी। अक्सर कहती हैं, आज भी हुआ कि एक सिस्टर ने शेयर किया कि मैं क्यों उसे याद दिलाऊं, मैं क्यों ऐसे ये बात बताऊं, मैं क्यों उसे हर्ट करूं। तो फैमिलीज अक्सर बोलती हैं कि हम ये बातें क्यों करें, हम अच्छी बातें करें ना, सिर्फ हम ये बातें क्यों करें। व्हाट डू यू थिंक कि क्यों ये बातें करनी जरूरी, जैसे आपने बोला कि डिटेल में रखना, डिटेल में आई एम श्योर बहुत सारी चीजें थी जो एक ठीक है। वाइफ सबके सामने नहीं शेयर कर सकती है। आपने उस स्टेज को भी बहुत बोल्डली गो थ्रू किया, है ना। हाँ जी मैम। तो क्यों हम डेटा इंटरवेंशन करते हैं ये डिटेल में मैम, फर्स्ट चीज़ तो ये है कि आपकी हीलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तक आपकी हीलिंग नहीं होगी ना, आपके अंदर वो रिजेंटमेंट और गुस्सा, वो सारे थॉट्स रहेंगे, तब तक आपको ना पेशेंट एक विलन दिखेगा। तब तक आपको पेशेंट पेशेंट एक विलन दिखेगा कि उसने मेरे साथ ये किया। जब मैंने वो डाटा इंटरवेंशन लिखा ना मैम, मुझे बहुत रिलीफ मिला। मतलब मैंने लास्ट में एक लाइन लिखी थी कि मैं आपको एक अच्छा बेटा, अच्छा हस्बैंड और एक अच्छा फादर देखना चाहती हूँ, और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं बीमारी में नहीं, आई कांट सपोर्ट यू इन दिस। मैं चाहती हूँ कि आप एक बहुत अच्छे इंसान बन के बाहर आएँ। और वो चीज़ हुई मैम। मैंने सारा डांटर, मैंने कोई चीज़ नहीं छुपाई मैम, नॉट कुछ भी नहीं, कुछ भी एनीथिंग। मतलब कोई हम बोलते हैं ना कि ये ना लिखो, वो ना लिखो, नहीं। मम्मा ने, इन्होंने बचपन से लेके सारा एक एक, उनको कोई डिजीज़ थी, कुछ भी था, वो लिखा टोटल। फादर ने अपनी साइड से लिखा। तो फिर उस पेशेंट को देखो बुरा नहीं फील कराना होता, हमें उसको रियलाइज़ होना है कि मेरे से ये चीज़ें हुई हैं। अगर हम किसी को बताएँगे, शेम नहीं फील करवानी कुछ भी। और वही चीज़ है, जब उसको पता लगता है, मेरे पेशेंट की अगर मैं बोलूँ डिनायल, तो मैम 2 मंथ्स में टूटी थी। 3 मंथ्स का प्रोग्राम होता है ना, उनको पूरे 2 मंथ्स लगे। पहले उनका था कि 1 ही मंथ लगाना है, फिर आए। बट जब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, जब वो रिहैब से निकले थे ना, तो मुझे लगता है पेशेंट ना सिर्फ ये एक्सेप्ट करता है कि मैं बीमार हूँ। मतलब 2 फेज़ है मेरे अकॉर्डिंग, एक है एक्सेप्टेंस ऑफ डिजीज़ और एक है एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रीटमेंट। तो उनके अंदर एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रीटमेंट नहीं था इतना, बट एक्सेप्टेंस ऑफ डिजीज़ था। तो वो 1 ईयर का प्रोसेस था जिसमें उनमें एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रीटमेंट आया। जब उनमें ट्रीटमेंट का एक्सेप्टेंस आया, तो अब वो फ़ॉलो-अप, पहले हमें डर लगता था उनको बोलने के लिए कि फ़ॉलो-अप पे जाना, अब वो खुद पूछते हैं कि मेरा फ़ॉलो-अप कब है? एक आपने बोला एक्सेप्टेंस ऑफ डिजीज, यस सर। और दूसरा आपने बोला एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफ ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट। ये इसमें क्या फर्क है? मतलब आई सी मोस्ट ऑफ द पीपल
एक्सेप्टेंस ऑफ डिजीज तक तो आ जाते हैं, लेकिन एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रीटमेंट के लिए फिर उनके अंदर बहुत से क्वेश्चंस आ जाते हैं। सर डिजीज़ तो है कि एक डायग्नोज बन गया कि मुझे अल्कोहलिज्म है और ये मुझसे हुआ और मुझे सब्सटेंस छोड़ना है, ये तो हो जैसे गया बाइपोलर, बाइपोलर स्किज़ोफ्रेनिया, यस कुछ सर भी कुछ साइकोटिक प्रोसेस बन गया। अब अच्छा, उस बीमारी को ट्रीट करने के लिए मुझे जिस प्रोसेस से निकलना है उसको एक्सेप्ट करना। हम मानते हैं कि चलो दवाई नहीं खाएंगे, फॉलो अप नहीं करेंगे, या दवाई खा लेंगे फॉलो अप, जो भी हम करते हैं है ना, अपना डिनाइल में ये नहीं करेंगे, थोड़े दिन का ज़्यादा दिन का, कम मेडिसिन ज़्यादा मेडिसिन, तो वो उसके लिए मैम टाइम लगता है। उनको पूरा 1 ईयर, उनके अंदर सारे सिम्टम्स आए, बीमारी को लेके भी आए कि नहीं मुझे ये दवाई नहीं खानी, ये होता है वो होता है, बट उससे हमने एक चीज़ बोली थी उनका, एक उन्होंने मेडिसिन नहीं खाई थी, उनको ये चीज़ बोला था कि अगर आप दवाई नहीं खाओगे तो आप बीमार हो जाओगे, अगर आप बीमार होगे तो हमें दोबारा हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और उस दिन के बाद मैंने उनमें चेंज देखा। मैं उसके दिन बाद उन्होंने नहीं कहा कि मेडिसिन को लेकर ये चीज़ होती है। तो ये एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रीटमेंट था, जो प्रोसेस था, धीरे धीरे आता है कि नहीं मुझे काउंसलिंग की भी ज़रूरत है, मुझे शेयरिंग भी करनी है, मुझे दवाइयाँ भी खानी है, मुझे फॉलो अप के लिए भी जाना है। तो अब वो चीज़ एक्सेप्टेंस आ जाती है। एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रीटमेंट आने में तकरीबन कितना टाइम लग गया था उन्हें? आई थिंक यहाँ जैसे बीमारी को तो मैम 4 साल हो गए हैं, यहाँ हमें 2 साल हुए हैं, तो मैं बोलूँगी कि 1 साल पूरा लग गया। वो जो था ना वो एक डिप्रेसिव फेज़ था जिसमें वो अपनी पेन से निकल रहे थे, क्योंकि जब उनको अच्छा फ़ील शुरू हुआ कि जो अब मैं काम भी करता हूँ, बिना सब्सटेंस के मुझे नींद भी आने लगी है, मुझे गुड फीलिंग्स भी आती हैं, मैं कहीं ट्रैवल करता हूँ तो मुझे एंग्ज़ायटी भी नहीं होती है, मतलब हर काम मैं कर रहा हूँ, मैं एज़ अ सन, फादर, हर चीज़ पे मैं पूरा उतर रहा हूँ जो हमारे तो फिर पेशेंट को लगता है कि ये इलाज की वजह से हो। दैट इज़ एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रीटमेंट। इसमें ना एक बहुत बड़ी बात मैं जो मतलब ऐड करना चाहता हूँ बाद में, मतलब एक चीज़ है कि हम इसे कहते हैं 24 आवर प्रोग्राम, आपको 1 डे एट ए टाइम करना है। तो पेशेंट इनिशियली इट इज़ एन लॉट ऑफ एफर्ट टू कंटिन्यू विद द ट्रीटमेंट। तो फिर आप अपने आप को कहते हो कि मैं एक दिन करूँगा, मैं एक दिन और Yes. करूँ, आज एक दिन और करूँगा। तो जब ये 3 मंथ्स निकल जाते हैं ना, फिर बंदा एक दिन उसके मन में ख्याल आता है यार 3 महीने हो गए हैं, मैं वहाँ नहीं हूँ जहाँ था, आज मैं कहीं और हूँ, मैं आगे से सौखा हूँ। मेरी वो जो मुश्किल थी ना, जो मेरे दिन रात की डाइंग एवरी मोमेंट ऑफ माय लाइफ, वो कहाँ गई है? ये हर रोज़ नहीं पता चलता, लेकिन हर रोज़ 24 आवर प्रोग्राम करने के बाद आफ्टर सम टाइम 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स, पेशेंट एक दिन अपने साथ बात करता है कि यार मैं ते बड़ा सौखा जा हो गया, मैं सौखा हो गया। और सर वो फेस पे भी शो होता है, फेस एक्शंस पे पे भी। मतलब कैसे, वो फेस से कैसे शो होता है कि बंदा सौखा हो गया जी? सर देखो एक होता है जब ऐसे हम सारे सौखे हैं। वो सर ऐसे कि जब वो पेशेंट उठता है, जो बीमारी में होता है, तो वो इरिटेटेड होता है। अच्छा, मतलब भी अच्छा, क्योंकि हम सुबह उठते हैं तो हमारा फ्रेश मूड होना चाहिए, तो लेकिन वो इरिटेटेड होता है, उस बोल मतलब हर छोटी छोटी बात पे इरिटेट होता है। जब अब रिकवरी में अब वो उठते हैं तो फेस पे खुशी होती है, वो उनका डेली का रूटीन है, वो आके सबको हक करते हैं, पापा के पैर छूते हैं डेली ये डेली। एक बार फिर बता दें ये क्लॉज में डाल के कि ये क्या हो गया जब ये सुबह उठते हैं। एक बंदा जो सड़ी बुद्धि के साथ सुबह उठता था, आज वो सुबह उठ रहे हैं तो क्या क्या करते हैं? वैसे सर मतलब वो मतलब ऐसे नहीं है कि वो जबरदस्ती होते, वो भागे भागे आते हैं, अच्छा, दिल से आते हैं। और क्या अगर करते हैं आके? आके जैसे मम्मा खड़े हैं तो मम्मा को हक कर, नहीं नहीं, एक मिनट पहले मतलब बड़े आराम से सुनना, देखो इसको ना जाने ना देना कहीं। हाँ जी, हाँ वो आते हैं तो मम्मा को हक करते हैं, गुड मॉर्निंग विश किया। अगर मुझे नहीं पता है तो मुझे आवाज लगाते हैं कि अगर मैं कुछ काम क्या कर क्या रही हूँ आवाज लगाते हैं तो ये बोलेंगे बताएं। शरण, तो ऐसे करके हक करते हैं, गुड मॉर्निंग विश करते हैं, फिर पूछेंगे पापा का। आपको भी हाँ जी, तो सब शर्म नहीं करते? नहीं। अच्छा, लोगों को यहाँ पे अपनी वाइफ को हक करने में शर्म आती है ना, फिर और उसके फिर आगे से उसके बाद वो पापा अगर हों तो उनके पैर छूते हैं, फिर पापा उनको हक करते हैं और उनको किस करते हैं डेली। ये नहीं है कि मतलब आज नहीं कल नहीं, बट ये चीज़ पिछले आई थिंक
ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਵੀ ਆਕੇ जैसे काम से आए खेत है ना, खेतों आके उन्होंने पापा ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ पापा कितने है, फिर उन्होंने और पापा और सन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत डिफरेंसेस थे। और पापा की भी बहुत मेहनत है, वो हर बार फॉलो अप के लिए उनके साथ आते हैं, हर फॉलो अप के लिए उनके साथ आते हैं। 2 साल से वो आ रहे हैं। उनने देखा भी मुझे भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो उन्होंने अपना कार्ड बनवाया और मेडिकेशंस ले रहे हैं। और वो अल्कोहल लेते थे, उन्होंने छोड़ दिया और वो ग्रेसफुली छोड़ी है, ऐसे नहीं कि मैंने नहीं है। वो प्राउडली कहती कि मैं तो पीता ही नहीं हूँ। अब बहुत सारी शादियाँ आई एंड ही वाज सेइंग कि सब पी रहे थे, एंड इट बहुत ये प्राउड वाली फीलिंग आती है मैम जब हम बोलते हैं कि हम नहीं पीते। इट्स अ वेरी मतलब अंदर से खुशी आती है जब आसपास ऐसा माहौल होता है ना। और इतनी सारी क्लोज रिलेटिव्स की शादी थी, तो मेरे पेशेंट बोलना कि नहीं मैं नहीं जाऊँ, रिकवरी खराब हो जाएगी। और मैंने उनका सपोर्ट किया कि हाँ ठीक है, हम दोनों नहीं जाएंगे, मम्मा पापा जाएंगे। अब फादर सन में डिफरेंसेस होना ये ना बहुत मेरे लिए बड़ा नॉर्मल सा फिनोमेना है। एवरी फैमिली दैट कम्स देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन फादर एंड सन। ये क्या डिफरेंसेस थे जब वो आए थे? डिफरेंसेस सर ऐसे थे कि जब वो अल्कोहल लेते थे, ठीक है, तो फादर को डेफिनेटली अच्छा नहीं लगता है ना। तो वो चीज़ें क्या थी, वो भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। वो आगे से कुछ बोलते थे, वो आगे से कुछ बोलते थे, तो वो झगड़ा हो जाता था। ये चीज़ मेन थी कि हम एक्सप्रेस नहीं करते कि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। ये हम कह नहीं पाते ना कि मेरे को तू बड़ा अच्छा लग रहा है लेकिन ये तेरा एक्ट नहीं मुझे अच्छा लग रहा। ये एक बहुत ज़बरदस्त साइंटिफिक चीज़ है कि तू मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एहसासा है, तू मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, लेकिन ये एक तेरा बिहेवियर जो है ना इज़ वेरी 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 पेनफुल फॉर मी। ये कह नहीं पाते हम। तो ये सर यही सबसे इमोशनली हम एक्सप्रेसिव नहीं होते, मैं भी नहीं थी। बट मैम देखो, आप रिकवरी में आ जाते हो ना, तो आपके बच्चे भी आ जाते हैं। अब मेरा बच्चा क्या है कि उसने देखा कि पापा पापा के पैर छूते हैं अपने, तो वो जब सुबह उठता है फिर वो अपने पापा के पैर छूता है, उसको देखता है दैट इज़ व्हाट कि वो भी वैसे ही भागा भागा वैसी एक्सप्रेशन वैसे पैर छू के हग करेगा। तो वो बच्चों में चीज़ें आ जाती हैं मैम। अगर बीमारी आती है बच्चों में, तो बच्चों में रिकवरी भी आ जाती जब है। आपका बेटा अपने पापा का पैर छूता है तो आपको जेलसी नहीं होती कि मेरे पैर नहीं, नहीं मुझे छुए? तो बहुत अच्छा लगता है, आपको बहुत अच्छा लगता बहुत है? अच्छा लगता है। क्योंकि सर एक ये भी रीज़न था रिकवरी में आने का, क्योंकि मैंने देखा था कि आज मेरा बेटा छोटा है, 5 साल का था उस टाइम मैम। तो मुझे याद है यहाँ जिस दिन उन्होंने रिहैब में शिफ्ट होना था, उस दिन ना उन्होंने मेरे से झगड़ा किया, उपेंद्र ने गुस्सा कर रहे थे, अग्रेसिव हो रहे थे। तो हाँ, मैं रोने लग गई। तो ना मैं बाहर आई, तो मैनू कहंदा मम्मा पापा नू इत्थे ही छड्ड चलदे। ठीक है, फिर मैम नीचे गया है ना, नीचे हम बैठे थोड़ी देर, फिर कहंदा ना मम्मा मैं पापा ਲਈ ਨਾ चिप्स लेके जाना ना, पापा खुश हो जाएंगे। तो दैट हिट मी कि इसकी ना दिमाग के अंदर 2 फादर, ये चीज़ है। और मैंने सोचा था कि मैम एक मदर के लिए ये देखना कि फादर और सन में वो चीज़ बॉन्ड नहीं है, दैट्स अ वेरी पेनफुल, है ना, कि एक बच्चे को ऐसा फील हो रहा है। तो वो मैम उस चीज़ ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। मतलब मैंने उस पेन को मोटिवेशन में यूज़ किया कि मुझे अपने बच्चे के लिए रिकवरी करनी है। आज मैं बोलती हूँ कि मेरे लिए सबसे बड़ी जो कमाई है ना, वो मेरे हस्बैंड की रिकवरी है। पैसा नहीं है, ज़मीन नहीं है, जायदाद नहीं है। जो मैं बोलूँगी ना कि मैंने ज़िंदगी में कुछ कमाया, तो वो रिकवरी है। और मैं अपने बेटे को अगर कुछ दे रही हूँ, बेस्ट चीज़ अगर मैं पूछे कि आप अपने बच्चे को क्या दे रहे हो विरासत में, तो मैं बोलूँगी कि मैं रिकवरी दे। इसमें ना एक नम्रता पॉइंट बहुत बड़ा है कि बिफोर एक आता है कि फैमिली पहले अपने आप को हील करे, फिर वो पेशेंट के लिए काम कर सकती है। बिफोर द डाटा इंटरवेंशन फॉर द पेशेंट इज रिटन, पेशेंट एक अपना डाटा इंटरवेंशन जरूर लिखे। फैमिली जब फैमिली अपना डाटा इंटरवेंशन लिखेगी ना कि यहाँ पे मैंने ये किया, तो फिर ये जैसे कि बच्चे को देखा, बच्चे ने बोला कि पापा को यहाँ पे छोड़ जाते, ये इनकी फैमिली इंटरवेंशन, राइट, फैमिली की इंटरवेंशन है। जब उसने बोला कि पापा के लिए ये लेके जाते हैं, तो ये इनकी मतलब शी वाज व्हाट शी वाज गोइंग थ्रू,
ये इंसिडेंट्स भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखने चाहिए। इसके साथ अपनी हीलिंग होती है एंड आप भी कभी रिकवरी से बाहर नहीं जाते। मैंने देखा है कि ऑलवेज 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 फैमिली इज द वन विच रिलैप्सेस फर्स्ट, पेशेंट उसको फॉलो करता है। सबसे पहले फैमिली रिलैप्स करती है। ये बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं, नोबडी वुड एग्री, बट आई हैव सीन कि जब भी कोई पेशेंट रिलैप्स हुआ ना, सबसे पहले फैमिली रिलैप्स हुई है। अगर फैमिली ने अपना डाटा इंटरवेंशन भी लिखा हुआ है ना, तो फिर फैमिली अपना डाटा इंटरवेंशन पढ़ती रहे ताकि वो भी रिलैप्स ना हो सके। नहीं सर, ये मैं आज से कर दें। ये चीज़ है कि सर जब हम किसी की शेयरिंग सुनते हैं ना, कोई नया पेशेंट की पेन है, तो मैं हमेशा उस चीज़ में अपने आप को इमेजिन करती हूँ कि अगर हम इलाज से बाहर हुए तो हम इस स्टेज में पहुंच जाएंगे। ये चीज़ अगर हम अपने दिमाग में रखें, पेन है नो डाउट मैम, कहीं नहीं जानी है, वो प्रोसेस हो रही है, बट ये चीज़ हमेशा रखें कि जो चीज़ हुई है ना वो दोबारा भी हो सकती है, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, और अगर हम इलाज से बाहर जाएंगे तो डेफिनेटली वैसा होगा। तो फिर वो आपको लगता है कि यहाँ हस्बैंड की बात नहीं है, बच्चा भी है, उसमें भी बीमारी आ जाएगी, चीज़ें कहीं ख़त्म तो होने नहीं वाली मैम। तो डेफिनेटली उससे बेटर है कि आज हम धीरे-धीरे, हमारी रिकवरी बहुत स्लो थी। मैं ये नहीं बोलती कि एकदम से उनमें जैसे 2 मंथ में उनका डिनायल टूटा, फिर 1 साल एक बहुत ही डिफरेंट फ़ेज़ था, ऊपर-नीचे कई सारी चीज़ें हो रही थी, है ना? बट वो जो जितना स्लो था ना, जैसे बोलते हैं ना, सैब पके सो मीठा होए, वो चीज़ बिल्कुल सही है कि वाक़ई में जो धीरे-धीरे चीज़ होती है ना, वो बहुत अच्छी रिकवरी हुई। और वो मैंने एक ही, जैसे मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट उनका था कि वो मेडिसिन्स लें, तो पहला जो फेज़ 6 मंथ है ना, मेरा मेन फ़ोकस हमेशा उनका मेडिसिन्स होता ना, ये नहीं कि सो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उन चीज़ पे मैंने कभी इंटरफेयर नहीं किया। जैसे-जैसे मुझे लगने लगा कि अब ये बेटर हो रहे हैं, तो एक-एक चीज़ें जो हमें लग रहा था कि ये मेरे करैक्टर डिफेक्ट हैं उनके, उनके रिगार्डिंग हम काउंसलर से बात करते गए। तो लास्ट था कि हम मीटिंग्स नहीं सुनते, मैंने शेयर किया कि मैम मीटिंग्स नहीं सुनते हैं। वो भी ऐसे हुआ, पहले उनको मुझे से इरिटेशन होती थी मम्मा से कि ये मीटिंग सुनती हैं, लेकिन हमने सुननी बंद नहीं की, हम सुनते थे डेली के डेली। ठीक है, फिर वो फेज़ आया जब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है आप सुनो। अब वो फेज़ आ गया है कि इस टाइम सारे जने एक ही रूम में बैठ के खाना खाते हैं और साथ में बैठ के मीटिंग, और फिर हम डिस्कस करते हैं कि अच्छा ये मेरे से रिलेट हो। जैसे एक दिन ना सर बोल रहे थे कि हमें बोर होना नहीं आता, तो मेरा बेटा खेल रहा था, जैसे बोर का नाम हुआ तो वैसे देखने लग गया, वो देखने लग गया कि सर क्या बोल रहे हैं, कि मतलब वो भी बच्चे आजकल के ना, वो उनको होता है कुछ ना कुछ चाहिए ही करने को, तो वो भी बोल देता है कि मम्मा मैं बोर हो रहा हूँ, तो बोलते कि ऐसे नहीं बोल, ऐसी चीज़ें हैं। जैसे एक दिन मॉर्निंग मीटिंग में आप शेयर कर रहे थे कि वो काम करो जो करने का मन नहीं करता, जैसे हमारा पढ़ाई करने का मन नहीं करता तो पढ़ाई करो, निधि मैम बोल रहे थे, है ना? तो वो बोलते हैं पापा मेरा भी नहीं मन करता मतलब वो चीज़ें सुनता है बच्चा, वो खेल रहा है लेकिन वो सुन रहा है टीवी में जो चीज़ें बोली जा रही हैं, तो ये चीज़ें हैं। और बाकी जैसे बोलते हैं ना कि आप अपने घर को ही हेरिटेज बना लो, तो अगर आप घर को, उनसे हमने बहुत सुंदर ना, उनका फर्स्ट रिकवरी था ना, तो हमने सेलिब्रेट किया था बड़े अच्छे से, है ना? तो हमने एक कार्ड बनाया था, हैप्पी रिकवरी, पापा उसने लिखा था, मैंने लिखा था, आई लव यू पापा ऐसे करके, तो वो मैंने अपने रूम में ना सामने चिपका रखा है। वो रिकवरी दिखती रहती है कि यहाँ रिकवरी लिखा है कि ये किस लिए, तो चीज़ें। जैसे आप अभी अपने पेशेंट के बारे में बात कर रहे हो, तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप कंसिस्टेंट हो प्रोग्राम में, तो आपकी सेल्फ हीलिंग कितनी हुई है? क्योंकि जैसे हमारी एम्पैथेटिक अप्रोच तभी अपने पेशेंट के लिए आ सकती है जब मैं खुद हील करना स्टार्ट करूँ। अगर मैं खुद ही पेन में हूँ, मैं उसकी पेन कभी अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाऊंगी। यस मैम, तो हाउ डिड यू वर्क ऑन इट? वो चीज़ मैंने ऐसे काम की, तो मैंने ये चीज़ बोली कि डाटा इंटरवेंशन जब हम डिटेल में लिखते हैं ना, तो हमारी 50% मुझे लगता है हीलिंग मेरी तो हो गई थी मैम। जब मैंने लिखा था ना अपना डाटा इंटरवेंशन, जो चीज़ें लिख दी थी मैंने, तो वो मुझे लगता था कि वो दिमाग से मतलब निकल को सुनाई सुनाई, और ठीक है वो चीज़ें होगी। फिर उसके बाद जो इन्वेंट्री है हम लिखते हैं ना, तो मैंने वो इन्वेंट्री डेली लिख, उसमें मैं लिखती हूँ मेरा मूड कैसा रहा, कि 4 to 6 था कि नहीं था, मेरे में कोई इरिटेटिव बिहेवियर आया, जहाँ मुझे पेशेंट को लेके कोई चीज़ आई, दिमाग में कोई थॉट्स आते हैं ना, कई बार हम बोल नहीं पाते तो उसको डायरी पे लिख लो, मैं थॉट्स लिख लेती हूँ, क्योंकि ना मैं कई बार चीज़ें भूल जाते हैं हम मैम, नई चीज़ें याद रहती, तो मैं वो थॉट्स लिख लेती हूँ। और फिर मैं देखती हूँ कि मेरे मूड स्विंग्स कब कब आते हैं,
और मुझे ऐसे लगता है हमें ना प्रॉब्लम हमारी होती है, हम दूसरे पे निकाल ट्रिगर्स हमारे होते हैं कि अगर मैं अपने बच्चे पे गुस्सा निकाल रही हूँ ना, उसके पीछे कोई और ट्रिगर ही होता है। मैंने ये नोटिस किया जब मैं लिखती हूँ ना वो डेली इन्वेंटरी, तो उसमें मुझे पता लग जाता है कि अच्छा ये चीज़ हो। और मैं बच्चे से भी पूछती रहती हूँ कि आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी, नहीं लगी। जब मैं बोलूँ, मैं अपने बच्चे के ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि इमोशनली बहुत एक्सप्रेसिव, हर चीज़ एक्सप्रेस करता है, क्योंकि ये मेरे अंदर वीकनेस थी और मुझे लगा था कि शायद रूट कॉज ऑफ बीमारी यही होता है मैम, कि हम एक्सप्रेस नहीं करते, नहीं कर पाते। है ना। चाहे कोई बड़ा है छोटा है, आपके अंदर जो फीलिंग्स है बता दो उसको एक तरीके से कि मम्मा पापा दादू दो भी ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरा ये करने का मन कर रहा है, तो वो बहुत इजीली बोल देते ये सारी और चीज़ें। अच्छी तरह एक्सप्रेस कर रहे हो आप। आई वुड वांट कि सारी वाइब्स पूछे। हाँ जी, हाँ जी, आप पूछें। मैम मैंने जैसे कि आपने बताया जो जो भी कि पहले मीटिंग उनको अच्छी नहीं लगती थी, या बैठना नहीं चाहते थे, या हमें भी मना करते थे कि आप क्या सुन रहे हो। यही चीज़ ये करता था पहले कि जब हम मीटिंग में यहाँ बैठते थे, यहाँ पे एडमिट था, तो ये रूम से बाहर नहीं आता था। जब आता था तो इसका ध्यान नहीं होता था। घर पे जाके हम ऑनलाइन लगाते थे तो वो भी इसने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया। लेकिन अब ये खुद आता है मेरे साथ, इसको पता होता है कि ये टाइम हो गया मीटिंग का, तो मम्मा चलो। जैसे मेडिसिन का आपने बोला, इसने स्टार्टिंग से एक दो बार मुझे बोला होगा कि इतनी मेडिसिन या ये मुझे खानी पड़ेगी। पहले पहले शुरू में कर भी देता था कि मैंने नहीं खानी, जैसे जिद में आके कि तंग करना है, तो मैंने इसको बड़े प्यार से बोला खा ले, एक दो बार बोलना फिर खा लेता था। अब ये खुद मांगता है। 9 बज जाते हैं, 8-9 बज जाते हैं, इसने बोला मम्मा मेरी मेडिसिन, मुझे मेडिसिन दे दो अपनी। तो छोटे छोटे चेंज जो हैं, जैसे आपकी बातें सुन रही हूँ तो लग रहा है कि थोड़े टाइम बाद हम भी ऐसी रिकवरी में आ जाएंगे। नहीं मैम, ये कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी सिचुएशन आए, आप वहाँ फुल स्टॉप नहीं लगाओ, आप चलते जाओ, धीरे धीरे ही चलते जाओ, चाहे क्रॉल ही कर लो, लेकिन चलते जाओ, रुको नहीं। जहाँ आप रुक गए आप वहीं स्टक हो जाओगे, क्योंकि आप फिर पीछे चले जाओ। जब रुक गए तो बीमारी तो आगे आगे जा रही है ना, फिर आपसे आगे निकल जाएगी। अगर आप क्रॉल कर रहे हो तो थोड़ा वो डिफरेंस थोड़ा कम रहे। जैसे ये भी एक रूम में बैठा रहता था, जैसे कि बंद बंद, लाइट बंद, कोई अंदर नहीं आए। किसी की बाहर से भी आवाज आई तो इसने जैसे गुस्से में चिड़चिड़ापन कि क्यों बोल रहा है। हम भी डर डर के बोलते थे दूसरे रूम में भी, ये उठ जाएगा, ये चिल्लाएगा। अब वो सारी चीजें इसकी काफी रिकवरी हो गई है उसमें। अब ये बैठता है हमारे साथ, बातें भी करता है, खुश रहता है। जैसे कभी इसने मम्मा ही नहीं प्यार से बोला होगा, कभी पहले कभी कभी बोलता होगा। अब मुझे अच्छा लगता है जब ये सारी काफ़ी बातें करता है मेरे साथ शेयर। तो बैठता भी, इसके पापा भी आते हैं तो उनके साथ भी बैठता है ये रूम में, जैसे कभी खाना भी साथ खा लेगा या बातें करेगा। तो इससे पता चल रहा है ना कि इसमें कितनी रिकवरी हो रही है। तो सर यही है ना कि फादर और सन का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो जब बहुत recover- खराब था मैम इन दोनों में भी। हाँ, वो जब रिकवर हो जाता है ना तो रिकवरी अपने आप शुरू वो हो बहुत ज्यादा खराब था। वो ऐसे था कि जब वो आते थे, इसने अपने रूम में तो आने नहीं देना किसी को। कभी उनका दिल भी करता था बात करने का, इसने ऐसे चिल्ला देना, जाओ यहाँ से, मेरी लाइट बंद कर दो। फिर वो दुखी से हो जाते थे, फिर बाहर आ जाते थे, अपने रूम में बैठ जाते थे वो। तो हमें भी ऐसे ही करता था, आप अपने रूम में चले जाओ, मेरे पास क्या करने आ रहे हो। तो फिर दूरियां जैसे बढ़ती जाती हैं ना, उन्होंने फिर ऑफिस चले जाना, उन्होंने रात को आना है, इसने भी बात नहीं करनी, उन्होंने भी नहीं करनी। फिर वो तो कोशिश करते थे, इसका नेचर ही ऐसा था, इसने ऐसे गुस्से में चिल्लाने लग जाना है। तो वो मैम बीमारी थी, बीमार, मतलब अब समझ patient में आ ऐसा रहा है, था, ये ऐसा अब नहीं यही था। समझ में आ रहा है ना। तब तो हम बोलते थे कि पता नहीं कैसा है ये, क्यों हो गया है ऐसा, क्यों है, हमारे साथ ही ऐसा होना था, इसको समझ क्यों नहीं आ रही है। लेकिन अब पता चल रहा है कि ये बीमारी है, तो थोड़ी हम भी इससे प्यार से ऐसे यहाँ सीख रहे हैं अभी तो इसको हैंडल करना, तो अब काफ़ी ठीक है। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਐਂਗਰ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਬੇਟੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਏ, ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹੂੰਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ। ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ।
ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ? ਮਤਲਬ ਦੱਸੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਟੈਂਟਰਮ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਬਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਓ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਣ लो कि बच्चा गुस्सा आ रहा है, जो कुछ भी आ रहा है कि ठीक है बेटे आ रहा है, इट्स अ इमोशन। मतलब एक ठीक है, उसको चैनलाइज करो, उसको थोड़ा डाइवर्ट कर दो। जैसे मैं उसको बोलती हूँ हम क्या कर सकते हैं, तो बोले कुछ खाना है, कुछ भी करना है, बच्चे मान जाते हैं और बच्चे हमसे ज़्यादा इजीली सीख जाते हैं। मैम हमें बहुत टाइम लगता है, हम बहुत डिनाइल में रहते हैं। बच्चे तो एक बार कहे ना तो उनको पता लग जाता है कि हाँ ये चीज़ है। तो नेक्स्ट टाइम वो आएगा, मम्मा मुझे गुस्सा आ रहा है, फिर वो आके बोलेगा कि मम्मा मुझे गुस्सा आ रहा है, फिर है ना कि मम्मा मेरे को आप अच्छे नहीं लग रहे, हाँ बोल देता मेरे है। को आप पे गुस्सा आ रहा है। हाँ। ये जब बच्चा कहेगा ना हम्म, एंड मदर इसको टॉलरेट कर देगी ये मुश्किल होता है सर, बट सुन लेते बच्चे। बोलते हैं मम्मा तुसी इन्ना ਉੱਚੀ ਕਾਹਤੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਰੀਟੇਟ ਕਾਹਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਐਂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਸ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਨਹੀਂ ਗਏ। अच्छा ये भी कह सकते हैं बच्चा को कि तुसी मेरे मामा ही नहीं हो। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਮੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਮਾ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਐਗਰੈਸਿਵ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਟੈਕਲ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਮੈਮ ਦੇਖੋ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨੇਬਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵੋਕਿੰਗ ਉਹੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ Controlling. ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਨ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਸਾਨ Policing, ਬਦਲ ਗਿਆ, policing. ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੰਪਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰ नहीं ਹੁੰਦਾ, सब चीज़ें ऊपर नीचे हो रही होती। बट वंस यू आर इन द ट्रीटमेंट तो मैंने यही चीज़ सीखी समझी कि सुन लो पेशेंट को। जो भी वो जो उनका फर्स्ट ईयर था ना उसमें उनके आ रहे थे, एंगर भी आ रहा था, गुस्सा भी करते थे, तो उनको सुन लो। और जब उनका फॉलो अप है, जहाँ अगर आपको लग रहा है इमीडिएट है तो आप फ़ोन कर लो काउंसलर, क्योंकि मैम ये ऐसी चीज़ हो रही है, इनको क्रेविंग्स आ रही हैं। तो वो जो आप उनको बोल देते हो ना, जब काउंसलर के साथ शेयर कर देते हो, आपकी एंजाइटी कम हो जाती है। और जब पेशेंट आपको कह देता है तो पेशेंट की एंजाइटी कम। तो अपने पास नहीं रखो, उसको पास ऑन करते जाओ। बस यही बात है। हाँ ये चीज़ है मैम, मैंने तो ये एक्सपीरियंस। मैम जैसे आपने बोला ना कि यहाँ आने से पहले आपने 1 साल मीटिंग्स लगाई थी, हाँ जी तो मैम। क्या आपने खुद भी कोशिश की थी उनको मीटिंग सुन के ठीक करने की कि मैं कर लूँ? नहीं मैम, मैंने खुद कोशिश नहीं की थी। जब मैंने सुना था ना, मुझे जो चीज़ स्टक की थी, देखो पेशेंट जो होता है ना वो बहुत पेन में, तो हम मीटिंग सुन रहे थे है ना, तो वो भी सुनने लग गए थे। ठीक है, मतलब यहाँ आने से पहले उनको पता था कि डॉक्टर साहब कौन है, ये हेरमिटेज क्या है और ये हॉस्पिटल क्या है और इसमें क्या होता है, ये सब चीज़ें उनको पता थी। वो सुनते थे मीटिंग, बट उनको ये डर था कि मैं ये चीज़ छोड़ दूंगा तो मैं कैसे जीऊँगा। उन्होंने ना मुझे एक चीज़ बोली, सर मुझे बहुत स्टक की, वो हम मीटिंग सुन रहे थे, मैं वो भी सुन रहे थे, मतलब इंटॉक्सिकेटेड स्टेज में थे। तो वो मुझे पता है क्या कहते ना, मुझे लगता है ना एक बार यहाँ जाके देखना चाहिए, एक बार यहाँ जाके देखना चाहिए। इंटॉक्सिकेटेड थे, इसका मतलब ड्रग ली हुई थी, लेकिन उस टाइम पे अंदर से आवाज आई कि यहाँ पे एक बार जाके देखना चाहिए। और ना फिर थोड़े 5 मिनट बाद जब मैं थोड़ा अलर्ट होगी ना कि अच्छा, हमें खुशी हो जाती है अंदर से कि वे मान गए है ना, चलो है ना, तो वो कहते ना देख ली मैनू इत्थे लेके ना जाई। हाँ। हेल्प हाँ। मैंने ना सर ने ना, जसबीर सर ये चीज़ बहुत बोलते होते थे ना कि पेशेंट जो कर रहा है ना वो हेल्प मांग रहा है। तो जब मैं उस स्टेज में थी ना, वो 1 ईयर वाले में, वो जो करते थे ये मैं सोचती थी कि वो हेल्प मांग रहे हैं मुझसे, मुझे हेल्प करनी चाहिए। मतलब अगर मैं अपने हस्बैंड को प्यार करती हूँ तो प्यार शो करने का ये तरीका है कि मैं उनका इलाज करवाऊँ। मतलब वो जो एक होता है ना कि हस्बैंड, वो चीज़ नहीं होती है, जो आप एक दूसरे का साथ देते हो ना, वो प्यार होता है। मतलब मैं बोलती हूँ मैंने इलाज करवाया अपने हस्बैंड का, तो मेरा वो प्यार है, तो और कोई चीज़ नहीं है। वो जो हवा में वो चीज़ नहीं है, नहीं, वो मतलब तो जो
पिक्चरों के लिए है पिक्चरों ना? के लिए है। मतलब हम बोलते हैं ना कि हम इतना प्यार करते हैं, तो मैं एक बड़ी स्टेटमेंट बोलती हूँ कि आप अगर अपने हस्बैंड से वाक़ई में प्यार करते हो ना, तो आप चाहे आपका हस्बैंड कुछ भी कर रहा है, तो आपको उसका इलाज ज़रूर करवाओ। चाहे वो कुछ भी आपको मार रहा है, पीट रहा है, धमकी दे रहा है, अगर वाक़ई में आप प्यार करते हो उस इंसान से, तो आप चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे आपको कुछ चीज़ बेच के भी इलाज करवाना पड़े ना, तो आप इलाज ज़रूर करवाओ, आप छोड़ोगे नहीं। क्योंकि वो इंसान बुरा नहीं है, उसको बीमारी ऐसी लगी है जिसकी वजह से वो वैसा है। ऐसे तो वो इंसान बहुत अच्छा है। वो बहुत पेन में है, बहुत पेन में है। पेशेंट बहुत पेन में होता है सर, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते वो किस पेन में होता है। नहीं कर पाते। मेरे को इतने साल हो गए, more than 30 years, मैं आज भी अपने पेशेंट की एग्जैक्ट पेन नहीं समझ पाया, और ना ही आपकी फैमिली की। आई डोंट थिंक एनीबॉडी ऑन दिस अर्थ कैन अंडरस्टैंड कि जितना मर्जी आप कर लो, आपको उतनी पेन महसूस नहीं हो सकती जितनी पेन एक पेशेंट उस पेन से जा रहा है और एक फैमिली उस पेन से जा रही है। और सर मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ, जैसे आप एक मॉर्निंग मीट में कुछ टाइम पहले प्लेन और प्लेजर का वो आप बता रहे बना थे रहे ना थे। ग्राफ, और आप वो ना तीली निकाल के जो आप एक दिन वो डेमो दे रहे थे। हाँ, वो हाँ, आपको याद है? हाँ, तो मैंने उस चीज़ में ऐसे रिलेट किया, हम बोलते हैं कि ना हमें खुशी कैसे मिलेगी? हम सोचते हैं ना खुशियाँ लेनी है खुशियाँ, तो जो आप एक तीली निकाल रहे हो ना पेन की बाहर, वो खुशी आ रही है, वो पेन नहीं निकल रही, वो खुशी बाहर आ रही है। वो जो एक तीली इधर ऐड हो रही है, वो खुशी की तीली है। देखो हमारी लाइफ बड़ी सिंपल है, हम एक दायरे में ज़िंदगी जी सकते हैं मैम, है ना? ये चीज़ हमें माननी पड़ेगी, है ना? हम बहुत एक वो ग्लैमर वाली लाइफ नहीं जी सकते, हम सिंपल सोबर ही ज़िंदगी जिएँगे ही, क्योंकि यही चीज़ है, ये रिकवरी में आपको एक बाउंड्री में ही रहना है। तो वो जो एक निकलती है ना तीली, वो आपकी जो है ना वो खुशी है। छोटी-छोटी जॉयज़ है, कोई बहुत बड़ी तो जॉयज़ है नहीं हम बोल लें कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन वो छोटी-छोटी खुशियाँ भी इतनी बड़ी खुशियाँ हैं ना कि जो आप महसूस कर सकते हो, आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आगे आइए। ये चीज़ है। ये वॉकर वाली ना हमने एक दिन काम किया था, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कैसे समझाऊं। तो वो लोग सोचते हैं कि पूरी की पूरी खुशी एकदम से मिल जाएगी। हुँ, मैंने कहा भला एक आप निकालते हो ना, तो हुँ, एक पिन निकालते हो वॉकर का, तो ये एक खुशी मिल जाती है, हुँ, मतलब इतनी खुशी होती है। हुँ। तो अगर आप सोचेंगे कि सारी की सारी सफाई एकदम से हो जाए, ये नहीं होना। और सर जितना आपको पेन महसूस होएगी ना, उतनी ही आपको फिर खुशी यू नीड टू फील वर्स्ट बिफोर यू फील फील बेटर। बेटर। यस सर, आप यही ये बोलते हैं। यू नीड टू फील वर्स्ट। जिसको वर्स्ट फील नहीं ना हो रहा यहाँ पे बैठे, हुँ, उसके लिए रिकवरी अभी बनी नहीं है। और जो इंसान पहले दिन बड़ी खुशी से एडमिटेड जा रहा है ना, उसके चांसेस कम है ठीक होने के। यस सर। जिसको उसकी मर्जी के बिगाड़ लेके जाया जा रहा है ना, उसके चांसेस ज़्यादा हैं। हाँ, ये ना नम्रता मैम बोलते थे कि अगर आपका पेशेंट आपसे नाराज़ है ना, इसका मतलब सही कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा काम करें। हाँ, जब आपका पेशेंट आपसे हाँ, खुश हो जाए ना, हाँ। इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जब हम गई। यहाँ आए थे ना 7 डे, तो मुझे लगता था कि कई पेशेंट ना बड़े अच्छे अपनी फैमिली के साथ कोऑपरेटिव थे। हमारा पेशेंट नहीं कोऑपरेटिव था, वो गुस्सा करता था। हम यहीं बैठे रहते थे सारा दिन, रूम में नहीं जाने देते थे वो। तो मुझे लगता था यार ये पेशेंट कितने मतलब ऐसे हैं कि मान रहे हैं कि काश मेरा पेशेंट भी हाँ, हाँ, नहीं मतलब ऐसा लगता है हमें कि वो हो रहा है। बट मुझे लगा कि वो चीज़ ना, जब आप कोई चीज़ पेशेंट विलिंग, वो कहते हैं ना आपकी अगर पेशेंट अपनी मर्ज़ी से आया, फिर वो अपनी मर्ज़ी से ही जाएगा। जो मर्जी से आया वो मर्जी से और जो जाएगा, फैमिली की मर्ज़ी से आया ना, फिर वो फैमिली की मर्ज़ी से ही जाएगा। ये चीज़ प्रोवाइडेड फैमिली रिकवरी में रहे रिकवरी तो। में रहे। यस सर। आपको आपको डर नहीं लगता कि वो फिर ना दोबारा मैम जाए? स्टार्टिंग में ये फ़ियर होता है, बट ऑनेस्टली वो 2 साल में अकेले बाहर कभी नहीं गए हैं। वो सिर्फ़ खेत जाते हैं, उनका टाइम पीरियड है इतने से इतने, वरना वो कहीं भी अकेले नहीं। मतलब मैं, पापा, मम्मा जो भी है, बच्चा नहीं तो साथ जाते-जाते, और वो मान लेते हैं। ऐसे नहीं है कि नहीं मानते, शुरू में होता था कि मैं अकेले जाना कुछ भी, बट वो जो कह रहे हैं इट मीन्स क्रेविंग आ रही है, उसके पीछे क्रेविंग है। अगर पेशेंट बोल रहा है कि नहीं मैं अकेला जा रहा हूँ, बट मतलब मैं बोलती हूँ कि 1 साल आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद पेशेंट चलना शुरू कर देता है। फिर वो आपसे कोऑपरेट करता है, आप जो बोलते हो फिर वो मान भी लेता है।
तो अब वो नहीं जाते अकेले। जो बोलते मानते हैं बाद में। हाँ हाँ बिल्कुल मानते हैं मैम, बहुत कंप्लायंस आया है, ऐसे तो बीमारी से पहले भी नहीं था नहीं, कंप्लायंस। इनको ना मनवाने की जांच आ गई है। यार भाई इनको यही तो वो मैं नहीं पूछने मैं मानते, सीखना चाहती हूँ वो नहीं मानते, इनको मनवाने की जांच है। वो तो आगे भी मानते थे, हाँ जी लेकिन इनको मनवाने की जांच नहीं थी। हम यहाँ पे सिखाते हैं कि आपको अगर मनवाना है किसी चीज के लिए तो आपको वो चीज सेल करनी आनी चाहिए हाँ एज ए वो बिजनेस। चीज़ आप ये मान लो बीमारी है, जब आप ये मान लोगे बीमारी है तो फिर वो आपको भी दिखेगा कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम चिल्ला के चीख के बोलेंगे तो कोई भी नहीं मानेगा, है ना। हेलो मैम, मैं जै ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿ ਅਕਾਲ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੈਦੀ ਦੀ ਮਦਰ ਮੋਲੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂਜੀ, ਸੀਗੇ, ਕੋਮਲ ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਾ ਸੀਗੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਨਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂਜੀ। ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜੈਦੀਪ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਲੇਜ਼ੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਘਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੂਟੀਨਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਉਹ ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕੋਈ। तो मैम मैं ही बोलूँगी कि बीमारी वापस आ, यही मतलब यही चीज़ है ना। वो बोला कि अब बीमारी आपने ग्रेसफुल एक्सेप्ट, जब देखो कोई भी सिम्टम, मेरे हस्बैंड 'ਚ कोई सिम्टम ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਅਗਰ ਲੋ 1 ਦਿਨ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਗਰ ਲੋ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਾਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੋ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਰ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਹਾਈ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੈਮ ਮੇਰੀ ਪਰ- ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹਰ ਵੀਕ ਚ ਹਰ ਬਲੇਨ ਮੈਮ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸ਼ਰਮ- ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਉਹ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਸਟੈਪ ਟੂਵਰਡਸ ਰਿਲੈਪਸ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੇਟ ਕੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰਿਲੈਪਸ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੈਂਟਲ ਰਿਲੈਪਸ ਹੈ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਰਿਲੈਪਸ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਲੈਪਸ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਲੈਪਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਹਰਮਿਟੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਐਂਡ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਵੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵਾਈਫ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਤਿੰਨੇ ਚਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੀ ਪੋਤਰੀ, ਦੋਤਰੀ ਵੀ, ਪੋਤਰੀ ਵੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਜਾਏਗਾ। कि आपने जैसे अभी बोला कि पेशेंट अपने कंफर्ट जोन में चला गया। सर मेरे पेशेंट भी ना कंफर्ट जोन में रहे थे अक्टूबर से पहले हाँ। पूरा 6 मंथ्स। और मैंने मतलब उनके वो वीक एक्शन के बाद मैंने अपना ये एक इंसाइट आई कि वो कहीं ना कहीं पेशेंट तो कंफर्ट जोन में थे, मैं ज़्यादा थी। मतलब व्हेन आई वाज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम हिम ना, मतलब वो कनेक्शन सिर्फ वैसा वाला था कि मतलब मैं स्कूल से आई हूँ तो अब मैं थकी हूँ तो मुझे 2 घंटे रेस्ट करना है। अब वो नीचे रूम में है, मैं अपने ऊपर रूम में हूँ। बट नाउ व्हाट वी ही रूम में करेंगे, वो डिस्कनेक्टेड नहीं रहना। इवन दिन में 4-5 बारी तो यही मैसेज मिल जाता है, डिस्कनेक्ट हुए तो बीमारी आ जाएगी। डिस्कनेक्शन ब्रिंग्स डिजीज एंड कनेक्शन ब्रिंग्स रिकवरी। तो ये चीज़ सर बहुत काम करती है। मतलब ये मैंने एनालाइज किया था खुद से कि उसमें मतलब मेरा बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन इनका है। जो मैसेज है बड़ा क्लियर कट है कि फैमिली को अपने अंदर देख लें। कहीं फैमिली भी तो नहीं स्ट्रक हो गई किसी पॉइंट पे, फैमिली खुद से तो नहीं कंफर्ट जोन में चली गई। जब पेशेंट थोड़ा ठीक होता है ना, तो हम भी कंफर्ट जोन में चले जाते हैं।
ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਰਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਡਸ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਈਂਡ ਸਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਿਟਰਮਿੰਡ ਹੋ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਔਰ ਯੂ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੇ ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ, ਹਰਮਿਟੇਜ ਦਾ, ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਹਰ ਫੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਨਾਇਲ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨ। ਹਾਲੇ ਮੇਰਾ ਪੇਨ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੇਮ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਕਾफ़ी ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹਰਮਿਟੇਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਨ ਟੱਚ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਡਾਇਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੈਕਟੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮਮਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ? ਸਰ ਡਾਇਰੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਆ ਸਕਾਂ, ਡਾਇਰੀ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਲਿਖਣੀ, ਡੇਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ। ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਡਾਇਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਰਚ 3 ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਫਸਟ ਡੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਾਇਰੀ ਮੇਰੀ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਡਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਅਲਰਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਲਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸਿਸ, ਬਹੁਤ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ ਕਿ ਰਿਲੈਪਸ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਅਲਰਟ ਰਹਿਣਾ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਰਹਿਣਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਲਿਬਰੇਟਡ ਰੱਖਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰਿਵੋਲਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਲਿਬਰੇਟਡ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਕੰਜੈਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਸਫੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਥਾਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਪਰ ਵਿਦਆਊਟ ਇਰੀਟੇਟਿੰਗ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ 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 ਇਰੀਟੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਉਹਦੇ ਦੇ ਮਦਰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी हाँ जी। मेडिसिन्स का कैसे हैंडल आपने किया, एंगर इश्यूज कैसे रिकवरी में आप लेके आए, which one had a lot of questions in mind which you've already answered on very very well. वो चीज़ें हैं ना कि मैम जब हम यहाँ से किसी को सुनते हैं तो हमें रिलीफ मिलता है। मैंने किसी को सुना था, मुझे रिलीफ मिला था, तो हमें अपनी रिकवरी पास ऑन। आज मुझे कुछ समझ आ, मींस आई एम अ सक्सेस। How did you manage to get him into recovery for so long? रिकवरी में वही ना कि पेशेंट को खुद पेन में रहने दो, मतलब रहने दो का मतलब है कि उनको अपने आप ठीक होने दो, हम नहीं उसमें इंटरफेयर करें किसी भी चीज़ में। हमें लिए कि जैसे एक हार्ट पेशेंट है, कोई कैंसर का पेशेंट है, उसका एक फॉलोअप होता है कि ये चीज़ें आपको करनी है। तो मेरे लिए सबसे प्रायोरिटी उनकी वो मेडिसन्स, उनका रिकवरी में रहना, उनकी बात सुनना, आगे से कोई रिस्पॉन्ड नहीं। शायद इतने, सर मैं आपको बोलती हूँ कि 2 इयर्स हो गए हैं हमें, शायद ही 2 साल में किसी ने हमारे घर में ऊंची आवाज में बात की, शायद ही, और हम किसी की चीज़ को लेके।
तो ये चीज़ पहले हमने अपने आप पे काम की। जब पेशेंट को लगा ना कि इनमें चेंज आ गया है, पेशेंट भी चेंज हो, जो हमेशा चीखे चिल्लाने की आवाज़ें आती थी, अब शायद ही सर नहीं, मतलब मुझे नहीं लगता। मिसेस पुरी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एडमायर यू फॉर योर यू आर सो हम्बल थैंक यू और मैम। इतने अच्छे तरीके से आपने सारा एक्सप्लेन किया. आई थिंक इट इज़ द माइलस्टोन विच हेल्प्स इन द रिकवरी ऑफ द पेशेंट, बिकॉज अगर आप हर चीज़ को इतने ठीक ढंग से डील करते हो तो ही पेशेंट जो है वो आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है और वो रिकवरी की तरफ. एक चीज़ आपने बोली कि इफ़ यू रियली लव योर पेशेंट, लव इज़ यू हैव टू गिव द ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंट, यस मैम। ट्रीटमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है. मैं सिर्फ ये शेयर करना चाहती हूँ कि उसको एक सही प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए. यस मैम। और हम भी काफ़ी देर से इस ट्रीटमेंट में इधर उधर भटके हैं, बट थैंक्स टू द गॉड, टू द बाबा जी बाबा जी। एंड पर्टिकुलरली डॉक्टर भाटिया, आई यस, वांट टू रियली मतलब थैंक मैं तो टू ये यू कि चीज़ मुझे ये अब लगता है कि अब हम इस प्लेटफॉर्म पे पहुंचे हैं और हमारा पेशेंट अब ठीक है. ठीक हाँ, है मैम। इज़ ओके. मतलब तो मुझे मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब पेशेंट घर जाता है, इनिशियल स्टेज में क्या हर्डल्स आती हैं और उन हर्डल्स को आप कैसे डील करते हैं? उसके लिए मैम देखो, पहले आपको ना सेशन हो जाते हैं, मतलब आपके काउंसलर, एक फैमिली सेशन होता है जहाँ आपको चीज़ें बताई जाती है कि आपको ये चीज़ें करनी है। तो हमने वैसे फॉलो किया, जैसे इनका पहले 7 डेज़ के बाद था, तो हमने पहले था कि हमने मैक्सिमम टाइम इनके साथ स्पेंड करना है। तो उनके उठने से पहले हम लगभग मैं अपना किचन का सारा काम ख़त्म कर देती थी। उसके बाद वो उठते थे, जैसे भी थोड़ा लेट उठना, तो ये नहीं कि उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। फिर स्टार्टिंग में हमें ये समझना चाहिए कि मेडिसिन से थोड़ा टाइम लगेगा ना, जैसे सर बोलते थे कि 15-15 मिनट, अब बोलते थे ना कि 11:30 से 11:15, फिर ये चीज़, तो ये चीज़ मैंने अप्लाई की। हम नहीं उठाते नहीं थे, हाँ अगर टाइम हो रहा, हम बोल रहे थे कि उठ लो, थोड़ा खा लो, मेडिसिन ले लो, फिर चाहे सो जाना। तो ये चीज़ बड़ी मतलब इतना ईजी नहीं होता, आपको अंदर से एंजाइटी हो रही होती है, बट आपको उस चीज़ को कि नहीं। फिर हम छोटी छोटी चीज़ें, जैसे हम कैरम बोर्ड साथ में खेलते थे, चारों जने, मम्मा पापा और हम चारों जने बैठ के कैरम बोर्ड खेलते थे। कभी लूडो खेल ली, शाम को बैडमिंटन खेल लिया। अगर पेशेंट बोल रहा है ना मेरा मन नहीं करता, तो छोड़ दो कि ठीक है आप रेस्ट करो, ये नहीं कि खेलो खेलो खेलो। उससे पेशेंट क्या होता है, इरिटेट हो जाता है। मैम ने बोला था कि अगर आपका पेशेंट सैड है, उदास है, थोड़ा नहीं उसका मन कर रहा है, इरिटेटेड है, उसको वॉच करो, बट उसके सर पे मत बैठो जाके। तो ये चीज़ मैंने की। अगर वो बोल रहे थे कमरे से बाहर जाओ, पहले मैं बोलती थी कि मैं नहीं जाऊँगी, मैं बाहर, है ना? मतलब ऐसे होता है ना कि नहीं मैं कुछ कर लेंगे, ये कर लेंगे। अब होता है ठीक है जा रहे हो तो बाहर चले जाओ। अब नहीं बोलते, बट जब वो टाइम होता है तब तो पेशेंट सब कुछ ही बोलता है। एक जो स्टार्टिंग वाला 1 ईयर फेज़ होता है ना, उसमें तो बहुत चीज़ें आती हैं। तो हम मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते थे साथ में। मतलब, और मैम मुझे ना ये चीज़, जैसे टीवी पे कोई अल्कोहल का वो चीज़ें आ जाती थी ना, तो अंदर से डर आता था। तो हमने शायद 1 महीना के 1 साल तक कोई सॉन्ग्स वगैरह नहीं लगाए थे। अब हम सॉन्ग्स लगाते हैं जिसमें अल्कोहल हो, वरना नहीं लगाते थे। वो चीज़ों, मतलब वो ट्रिगर थे। 1 साल तक हम मार्केट में उनके साथ नहीं गई थी, क्योंकि उनका ये चीज़ था, मार्केट जाते थे वो अल्कोहल ले लेते थे। तो 1 साल तक हम मार्केट नहीं गए थे। जब उनको जाना था, हम पूरी फैमिली जाते थे, कि मुझे पता था कि उनको पता था कि ये वीक पर्सन है, इसको, मुझे भी था कि मैं कहीं न कहीं अभी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, है ना? तो वो पापा के साथ जा, और अकेले आज तक भी वो मार्केट नहीं गई, 2 साल हो गए। क्योंकि पेशेंट भी ना फिर एन्जॉय करना शुरू कर देता है आपकी कंपनी। वो जो रेड फाइल्स होती हैं वो थोड़ी नीचे हो जाती हैं, और वो नई-नई जो मेमोरीज़ होती हैं ना, तो वो बनना शुरू हो जाती इतनी बढ़िया लैंग्वेज बोल रहे हैं ना, सारी है। मतलब ऐसे है कि शायद हमें ना किसी और जगह पे जाके ये लैंग्वेज हमारे मन से निकलती है। जैसे आपने 4 to 6 कहा, आपने इतनी अच्छी बात की कि आपने इलाज नहीं करना, करवाने देना है ना? यस सर। इतनी बड़ी बात है इसमें, ये समझने के लिए तो मेरे ख्याल 1 साल लग जाता है। बंदा कहता है कि मैं इलाज करान देना, मैं कहना रुक क्या है, मैं ही कोई मैं ही तो इलाज करवान दे, पर नहीं, करवा सिर्फ पैसे देने इलाज करवाना नहीं है। Having faith, trust, counselors, family, working on myself,
अंडरस्टैंडिंग पेशेंट, लिसनिंग टू पेशेंट, ये इलाज करवाने देना है। अब पेशेंट कहता मैं नहीं दवाई खानी, छुट्टी दवाई, हाँ बिल्कुल कोई गल हाँ, 2 बार नहीं। इस 1 तरह भी घंटे 2 होया घंटे ਸੀ। बाद ਅਬਲ ਤੇ ਆਪੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾ ਲੇਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹੋ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜੇ ਇੱਕ ਚੁੱਕ ਕਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਕਟਾ। ਮਤਲਬ देयर इज अ वे एवरी टाइम। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹਾਂ, 1-2 ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਮੈਮ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸੀ, ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਆਪਣੀ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਾਂਜੀ मेरे पास जब माइक आया ना तो मेरे दिमाग में चल रहा था अच्छा मैं ये पूछूंगी, तो जब मैंने सोचा ना ये पूछूंगी, साथ साथ वो उनका ऑलरेडी अभी जवाब देते जा रहे थे, जैसे उन्होंने मेंशन किया आप ये कि पूछें कि मैं अपना ध्यान कैसे रखूं। हाँ जी, वो ये मैं अब उस बताएं, पे ही आ रही हूँ। हाँ मतलब आई वांट हर टू इम्प्रूव हर हेल्थ, तो आप इनको बताएं कि अपना ध्यान कैसे रखें। पेशेंट तो ठीक हो जाना है। तो हाँ इस बार मतलब मेरा कैसा है, तो अगर मेरा ब्रेक डाउन चल रहा है या मैं इमोशनली बहुत लो फील कर रही हूँ तो मेरा खाना इफ़ेक्ट होता है। कई लोग खाना बहुत खाने लग जाते हैं, मेरा खाने से मन उठ जाता है। तो और फिर मैं कुछ बहुत घंटे भूखी भी रह सकती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा घंटे। बट जो मैं 1.5 साल पहले वाली थी और अब थी, अब चाहे मेरे अंदर मन नहीं था फिर भी मैंने कहा ये खाना है तो खाना ही है जैसे तैसे। मुझे 2-3 दिन लगे थे, मेरे पेट में बहुत बटरफ्लाइज और एंग्शियसनेस भी होती थी। तो मैंने उसके साथ कैसे डील किया था, मैं उठ के मतलब अगर सपोज मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझे बहुत एंग्शियस फील हो रहा है, बटरफ्लाइज फील हो रहे हैं, बहुत थॉट्स आ रहे हैं, तो मैं अपनी जगह ही बदल देती थी, बाहर चक्कर मारने चली गई या कोई टीवी लगा लिया कि एक बार वो मैनेज करने के लिए। अब जैसे कल मैं बहुत बहुत लो स्टेट में थी, आज दोपहर तक बहुत लो थी, मतलब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था मैं कैसे डील करूं, क्योंकि मैंने अपना एंगर सप्रेस किया हुआ था। मेरी स्ट्रेंथ ना सेल्फ एक्सप्रेशन है, तो मुझे जो लगा फट बोल दिया, सामने वाले को अच्छा लगे बुरा लगे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता था, मैं कहती थी मैं अपना एक्सप्रेशन रखूं। बट अब मैं इसके साथ डील कर रही थी कि आई हैव टू, चाहे ये मेरा सेल्फ एक्सप्रेशन है बट आई हैव टू बी केयरफुल कि सामने वाले को कैसा लगेगा, तो इसलिए वो मैंने दबा के रखा था 1.5-2 दिन से। तो आज दोपहर तक मेरे से वो डील ही नहीं हो पा रहा था। फिर अराउंड 4 o'clock मैं अपने बच्चों के पास गई, जैसे ना बच्चों ने मेरा चेहरा पढ़ ही लिया हो, तो मैंने कहा अध्ययन अरहान इधर आओ, मेरे को ना कुछ चाहिए। तो जैसे ही मैंने बोला ना कुछ चाहिए, दोनों आए इतनी ज़ोर की, उन्होंने ऑलरेडी हग दी और इतनी सारी किसेस दी, एंड दैट चेंज्ड, दैट गॉट माई एनर्जी बैक, आई एम मच मोर बेटर इन अ बेटर स्टेट। अब मुझे नहीं पता वो कैसे हुआ, बट दैट आई गॉट दैट एनर्जी। देखिए आप ये सोच लें कि जब आप इस काम में होते हैं ना, ये बड़ा इन्होंने बोला आई थिंक आई एम द मोस्ट मतलब लकीएस्ट पर्सन जिसको ये काम मिला हुआ है। तो आप ये काम जो कर रहे हैं ना, तो आप हर टाइम पे ये सोचेंगे गॉड इज़ ऑलवेज विद यू। ठीक है, उसने आपसे जो सोल्यूशन आपसे नहीं निकलना उसने निकाल देना है। ठीक है, तो एक मैं आपको बताऊंगा, आपकी ये चीज़ है ना कि अंदर रखूंगी तो अपने आप को दुख दूंगी, बाहर निकालूंगी तो किसी पे करेंगी। तो इसमें आप काउंसलर के साथ बैठ के ना एक बीच का एक थेरापेटिक भी होता है, जिसमें आपने दोनों चीज़ें नहीं करनी, लेकिन आपने इसको मॉडिफाई कर देना। ठीक है, ठीक है। तो अगले को देख के ना भी मेरे को ऐसे लग रहा है, तो आप कुछ स्टेटमेंट देते हो तो उसका कुछ आता है जवाब। हाँ जी। तो आप ये इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, आपकी बारी है जी। आई वांटेड टू आस्क, जैसे आप कह रहे थे रिकवरी में फर्स्ट ईयर आप में जैसे पेशेंट हाई लो चेंजेस भी थे, तो वो चेंजेस उनमें तो थे एंड यू कुड अंडरस्टैंड, बट समवेयर इट अफेक्ट्स आवर माइंड ऑल्सो। तो उस टाइम पे आप अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखते थे? उस टाइम मैम देखो मैं थोड़ा ना, देखो ऑनेस्टली हम एक टाइम पे तो हमारा चिम्ब्रेन ऑन हो जाता है कि मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं, जब आपको डर होता है कि रिलैप्स ना हो जाए, है ना, यही सबसे बड़ा डर होता है। तो मैंने ये देखा कि जिस चीज़ से आप डर रहे हो ना वो पक्का ही हो जाएगी फिर।
है ना? तो फिर मैं क्या करती थी, उस जो इमोशन आ रही है ना उसको गो थ्रू करो, मतलब उससे भागो नहीं। मतलब होती है ना, जैसे मेरे में ना एक्सपीरियंस अवॉइडेंस बहुत थी, मतलब जिस चीज़ों से मुझे डर लगता था ना मैं उनसे भागती थी। तो मैंने आप ये तो सारी डॉक्टरी सीख गए हो, मेरे पास क्या रह गया। ये एक्सपीरियंस अवॉइडेंस तो मेरा फेवरेट वर्ड था। नहीं मतलब वी ऑल नीड टू बी दैट मच, वी ऑल एडमायर, एंड ये चीजें जो आप इनकी एडमायर करेंगे ये आपके अंदर आ जानी है। सर ये नीड है हमारी, वांट नहीं। ये नीड है, वांट नहीं है। ठीक है, तो आप और कुछ पूछना चाहते तो पूछें। was my main question कि पॉजिटिव रहना, क्योंकि not every time you can be positive. यू कांट बी। So at that time how you used to help yourself कि कैसे, क्योंकि पिकअप तो अपने आप को करना ही है। वो चीज़ है कि आप जिस हो रहे हो ना पहले उस चीज़ से आप दूर चले जाओ। जैसे आप डिटैच्ड अटैचमेंट। अटैचमेंट, अगर आप रूम में हो ना तो रूम से बाहर आ जाओ। इस पानी टाइम पी पे लो। आप अपने पेशेंट को नुकसान कर सकते हो ना, हम्म। तो फिर आप फटाफट एक बाबा जी के कमरे में जाएं, आई थिंक सर कुछ पेशेंट को कुकिंग। नुकसान करने से पहले तो आपका सेल्फ नुकसान भी हो सकता है, तो वो स्टेट भी नहीं आनी हाँ, चाहिए। इनिशियल स्टेज में ऐसे है ना कि आप काउंसलर को कॉल कर लो, मतलब मैं तो यही करती, अभी तक भी मेरा यही फंडा है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ना, कि बबलीन मैम नहीं तो श्वेता मैम, कोई तो फ़ोन उठाएगा नहीं है, उठाएगा तो फ़ोन कर लो, नम्रता मैम, किसी को भी कर लो, उस चीज़ को प्रोसेस कर दो, क्योंकि मैम हम भी बहुत फियर ड्रिवन होते हैं, हम बहुत बीमार हो चुके हो। तो ये इन्होंने बहुत बड़ी बात करी है कि आप अपनी एंजाइटी, बेचैनी, अपने इमोशन, एक तो इन्होंने वर्ड्स बड़े अच्छे यूज़ किए हैं कि इन सबको ना अपने एक वोकेबलरी दे दी है, क्योंकि अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करना और उसको वोकेबलरी देनी एक बड़ा ज़बरदस्त सब्जेक्ट है, बहुत से लोग नहीं कर पाते। फिर दूसरी बात है उसको प्रोसेस कर लें। हाँ है तो है, हाँ, ये चीज़ चलो बहुत ठीक बड़ी है। है तो है, लेट मी लिव विद इट, वो अपने आप ही ठीक हो जाती है। 50% तो उसी टाइम चले जाते हैं जब आप उसके साथ लड़ना बंद कर देते हो ना। जो इन्होंने एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस बोली, इसको जरा समझा दें डिटेल में। एक्सपीरियंस अवॉइडेंस ऐसे होती है कि जैसे हमें किसी से बात करने में एंजाइटी हो रही है तो हम उस पर्सन को अवॉइड कर देते हाँ। कि जब मुझे ये बात करनी है ये बात ही ना करो। हम्म। ये नहीं, जब हम उसको करते हैं वो प्रोसेस होता है हमारा इमोशन, तो हमारा जो एंजाइटी लेवल है वो कम हो जाता है। मेरे में ये बहुत सारे, जिस चीज़ से डर लग रहा है ना वो करो ही नहीं। तो मैंने ये चीज़, मतलब मैंने ये नोट डाउन की है सारी चीज़ें, मतलब स्टार्टिंग जो फेज़ था उसमें मैंने सर जैसे सारे केमिकल्स थे उनके नाम लिखे, उनको पढ़ा। जैसे हम होता है ना कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, तो मैं बुक्स बहुत पढ़ती हूँ, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। तो मैंने सोचा कि मैं पढ़ रही हूँ, जैसे सर मैं सीख रही हूँ, एक नया सब्जेक्ट है कि चलो मैंने इंजीनियरिंग तो की है, वो एक अलग चीज़ थी, बट अब मुझे ये चीज़ें, मतलब ये मेरी नीड हो गई है अब, और मुझे इंटरेस्टिंग भी बहुत लगता है। टू बी ऑनेस्ट मुझे ये चीज़ें बहुत मुझे ब्रेन के बारे में पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। कोई भी नई चीज़ होती है तो फिर मैं उसको एक्सप्लोर करती हूँ। और जैसे अब मैं अगर जैसे पेरेंट, मतलब मैंने पेशेंट को छोड़ दिया है कि लेट हिम डू हिज वर्क, जो अपने फॉलो अप कर रहे हैं जो भी चीज़ें हैं, अब मुझे एक कॉन्शियसली उनको देखना है। बट अब मैं थोड़ा अपनी मदरहुड पे काम करना है, तो उसके लिए मैं बुक्स ऑनलाइन बहुत सारी चीज़, अब तो मैम इतना कंटेंट है ना, उसको आप अप्लाई करो। पहले क्या था, हम पढ़ते थे अप्लाई नहीं करते, अब मैंने अप्लाई करना शुरू किया। जब आप अप्लाई करना शुरू करते हो तो फिर आपको बहुत मज़ा आता है उस चीज़ों में करने में, नई नई चीज़ें। मतलब जैसे मैंने एक बुक में लिखा था कि आप पढ़ो कि बच्चे के साथ आपके क्या ट्रिगर्स हैं। तो मुझे ये पता चला कि आज ही मुझे ये चीज़ पता चला कि मैं एक परफेक्ट मदर बनने की कोशिश कर रही थी। यस, ये चीज़ थी कि उतनी चीज़ें हैं नहीं जितना मैं बन रही करने की जैसे कोशिश। अनु मैडम बोलते हैं, रोज ये ही था, बोलते हैं। उनसे से आज मेरा सेशन था, तो मैंने उनसे सारी चीज़ें, तो एंड कंक्लूजन ये निकला कि मैं एक परफेक्ट मदर बनने की कोशिश कर। तो एक बच्चा वो सब चीज़ें ही करेगा, मेरे में हिम्मत नहीं कि मैं वो सुन पाऊँ। दैट्स माय प्रॉब्लम कि मेरी कैपेसिटी नहीं है कि जो बच्चा बोल रहा है मैं सुन पाऊँ। मुझे अपनी कैपेसिटी थोड़ी बनानी पड़ेगी कि वो जो बच्चा बोल रहा है उसको मैं सुनूँ, उसको प्रोसेस करूँ, उसको जवाब नहीं दूँ कि अच्छा ये बोल रहा है गंदी चीज़, ऐसे नहीं बोलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये चीज़ें। इसमें मज़ा बहुत आता है जब आप करते हो। मैम और अगर आपको छिपकली से डर लगता है तो आप हर टाइम पे ना वो देखें
कि मैं उस जगह पे जाऊँ जहाँ छिपकली ना हो। यस तो हाँ पहले से आप ऑर्डर कर दें कि जहाँ पे मैं आ रहा हूँ यहाँ पे आगे से छिपकली नहीं होनी होना चाहिए। चाहिए वो एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस है। आप फिर हर जगह से ये देखना शुरू कर देंगे, रेस्टोरेंट जाएंगे देखेंगे छिपकली तो नहीं है, छिपकली फ़ोटो से भी डरेंगे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ती जाती है चीज़। तो एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं हमारी लाइफ में, लोगों को मिलना एक्सपीरियंसेस। हमारे पेशेंट पता है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ड्रग्स क्यों करते हैं? दे हैव सोशल एंग्जाइटी, दे डोंट वांट टू मीट पीपल। वो उन लोगों को अवॉइड करते हैं, फिर अकेले पड़ते जाते हैं। हमारे पेशेंट लोनली आइसोलेटेड हो जाते हैं एक टाइम पे आके, तो वो एक्सपीरियंसेस को अवॉइड करते हैं। कुछ खुद से उनकी पहले से स्टेट होती है, और ड्रग्स लेते भी इसलिए हैं क्योंकि उनको लोगों से बात करने में डर लगता है, घबराहट होती है। इसको हम फिर डिटेल में करेंगे, आज बड़ी नॉलेज ले लें। हाँ जी। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੀ। देखो, हमेशा याद रखना कि ठीक गल करनी नुकसानदेह हो सकती है, हाँ ना गल करनी नुकसानदेह हो सकती है। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਦਤ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਦਤ ਚੰਗੀ। ਠੀਕ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਠੀਕ ਗਲਤ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਉਹ ਅਗਲੇ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਰੱਗਸ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ, ਠੀਕ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਣਾ। ਅਗੇਨ ਵੈਨ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਸੇਇੰਗ ਟਾਕ ਟੂ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਟਾਈਮ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਥਰੂ ਥੈਰਾਪਿਊਟਿਕ ਰੀਜ਼ਨਸ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ। ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਵੈਰੀ ਡੇਂਜਰਸ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਸਤਿ ਨੂੰ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਮਾ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਰਿਕਵਰੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ। She's been one of the ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ deadliest warrior, ਅਨਮੋਲ wife, ਅਨਮੋਲ mother, everything. She has saved her husband from, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 5 ਮੇਰੇ ਬੈਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੋ। ਹੰਬਲ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਐਂਡ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਚਲ ਜਾਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਮਾਲ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਇਜ਼ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ। ਸਰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਸਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਮਤ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਡੀਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਈ ਲੈਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਵੀ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣੀ, ਨਾ ਵੀ ਦਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਲੋਅਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਰਿਲੈਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਰਿਲੈਪਸ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਐਂਡ ਮੈਮ ਅਸਲੀ ਰਿਕਵਰੀ ਫੋਲੋ ਅਪ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਨਾਲੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ,
ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗੀ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਫੋਲੋ ਅਪ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਗੀ, ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇੰਟੂਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਟੂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮੈਸੇਜ ਟੂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਟਿੰਗ, ਹੁਣ ਜਿਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਵੀ ਬੈਠੀ, ਫਾਦਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਘਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮੈਸੇਜ ਟੂ ਦਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਟੂ ਮਚ। ਸਾਡੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਦੇਖ ਕੇ ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਰਿਲੈਪਸ ਐਂਡ ਰਿਲੈਪਸ ਕੈਨ ਬੀ ਵੈਰੀ ਡੇਂਜਰਸ। ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਡੈਂਟਰੀ ਲਾਈਫ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਬੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸ਼ੂਗਰ, ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਸਿਰਫ ਸੈਡੈਂਟਰੀ ਲਾਈਫ ਨਾਲ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕਾਫੀ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਡਰੱਗਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਜਦੋਂ ਡਰੱਗ ਲਈ ਹੋਏ, ਇੰਟੌਕਸੀਕੇਟਡ ਹੋਏ, ਬੰਦਾ ਇੱਕਦਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ 'ਚ ਹੋਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਰਾਈ ਡਰੰਕਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗ ਅਡਿਕਟ ਤੇ ਡਰਾਈ ਡਰੰਕਨ, ਇਹ ਦੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੋਟੋਰੀਅਸ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਲ ਦਾ ਵੂਮੈਨ। ਹੁਣ ਮੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋ। ਬੇਟੇ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋ ਸਰ? ਤੁਸੀਂ no, what do you think? रिकवरी को कह रहे 2 साल हो गए अभी। फर्स्ट ईयर मुश्किल था, अभी मैं भी शुरू ही किया जस्ट अभी। आई वाज जस्ट आप देख रहा था कि वेयर एम आई, इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। But it's not that problematic. No, it's not. It becomes an adventure. Yes. And you start feeling at one point of time कि why I was missing for so long. ये स्टेप मैंने पहले क्यों नहीं लिया? ये आपको आएगा रिकवरी में। हाँ जी सर। ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜੀ ਕੀ ਰਿਗਰੈਟ ਕੀ ਹੈ ਐਵਰ ਸਿੰਸ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟਡ, ਤੇ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਆਫ ਟੁਡੇ? ਦੇਖੋ, ਰਿਗਰੈਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੰਨੀ ਕਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਰਿਗਰੈਟ ਹੁੰਦਾ। ਐਜ਼ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰਿਗਰੈਟ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਸਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੈਪੀ ਲਾਈਫ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਹ ਡੇਲੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦੈਟਸ ਅ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਨਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਟ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਕਿ ਰਿਗਰੈਟ ਹੈ। ਮਾਫੀ, ਤਲਾਫੀ ਤੇ ਇਜ਼ਾਫੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ we are sorry what we did with you, what we did with our patient, we are sorry about that. ਤਲਾਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ start doing something positive for our patient, ਕਿ ਲਾਈਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 100% ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, start doing it 120%. ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, keep on doing in even in your office, keep certain fundas which are you have learned from here, ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। that is ਤਲਾਫੀ, ਕਿ ਵੀ it's a little more than that. ਜੇ 100% ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 200% ਤਲਾਫੀ। ਇਜ਼ਾਫੀ ਇਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਪੇਰੈਂਟਸ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੇਨ 'ਚ ਹੈ, ਯੂ ਆਸਕ ਫਰੋਮ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕਿ ਕੈਨ ਆਈ ਟਾਕ ਟੂ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਡਮਿਟਡ ਹੈ ਇਨ ਪਾਟਿਆ ਹਸਪੀਟਲ ਔਰ ਇਨ ਸੈਟਰਡੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੇਅਰ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਟੇਕਿੰਗ ਅ ਬੋਲਡ ਸਟੈਪ ਕਿ ਲੈਟ ਮੀ ਸ਼ੇਅਰ ਇਹ ਇਜ਼ਾਫੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਕਈ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇਜ਼ਾਫੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਿਸ਼ਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਅੱਜ ਨਿਸ਼ਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਲਿਟਲ ਅਪਸੈਟ ਯੈਸਟਰਡੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਮਿਟੇਜ 'ਚ ਦਿਨ ਬਿਤਾਓ। ਸ਼ੀ ਡਿਡ 1 ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ 2 ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੈਨ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਵਿਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਦੈਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿਚਨ ਡਾਈਨਿੰਗ ਏਰੀਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ, ਕਲੀਨਲੀਨੈਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਖਾਣੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰੂਮਸ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ, ਬੈਡਿੰਗਸ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ, ਇਜ਼ਾਫੀ। So you are contributing a lot and she thanked me after that ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਰਮਿਟੇਜ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੇਵਰ। ਸੋ ਯੂ ਸੀ ਇਟ ਮੇਕਸ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਜੇ ਇਹ ਖਾਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਸੋ ਆਨੈਸਟ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖਾਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ, ਕਿਚਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਊਟੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਆਪੇ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਿਆ ਦਿਓ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੀ ਹੁਣ ਸਫਾਈ। ਯੂ ਸੀ ਦੈਟਸ ਸਮਥਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਇਜ਼ਾਫੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇ ਆਰ ਸਟਿਲ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਪੇਨ, ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਜਸਟ ਅਬਸੈਸਡ ਅਬਾਊਟ ਯੋਰਸੈਲਫ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਇਟਸ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵਿਚ ਆਰ ਐਡਮਿਟਡ ਟੁਡੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ।